Okay, hello and welcome to Elbistech. This is the DevOps webinar. This is the webinar in which we will discuss the different things related to the DevOps. First of all, I appreciate if everyone will continuously engage and quickly reply me on the chat, and if you want to talk, then you can unmute yourself, and then we will continue. So this is the webinar which we will discuss the different things related to DevOps, because इस webinar के लिए जो मेरा mainly focus है, the main reason of this webinar is that कि आप लोगों को motivate किया जा सके. You can easily jump into the webinar, in the DevOps field, and you can easily and confidently learn the new things, new technologies. This is the main perspective and main thing of this webinar. So first of all, we will discuss the agenda of this webinar. We will start from the introduction of the instructor. I will introduce myself first, and then we will move on to the about Elbistech. This is the platform on which I'm teaching these courses. So this is I will tell you about the little bit about the Elbistech, and we will start moving to the DevOps. So we will check what is the DevOps and why DevOps is important. We will discuss some case studies related to the market values, related to the market salaries. It's just the salaries is we will discuss in this webinar. It's related to the international market or average market salaries and the local market salaries as well. So some few case studies we will discuss, and after that we will teach and learn the CI/CD related things. And after that we will start it from the DevOps tools. That we will discuss the DevOps tools which I will cover, and what the market most important DevOps tools which we have for related to the DevOps. These are the open source tools which we will discuss in depth. And after that, about the course which I will teach you, I'm starting the new batch of my DevOps course, so that this is the one of the part related to the DevOps which we will discuss, and I will tell you about my course, about my teaching, about my experience, and my previous students' experience as well. So I will try my best to manage some time for the demo. I didn't completely ready for the demo, but I will just wanted to show you the terminal and different tools, so you can have the better understanding that what is the Linux and what is the Terraform, or what is the CI/CD related. Few screenshots I have in these webinars as well, and I will try my best to cover the demo as well. But that's why I have put it the optional word in with this. So we will cover lastly. We will cover the question answer sessions. The question answers are continuously. You can, if you have any question related to any part, then you just need to raise your hand using the Zoom option, and I will ask you to unmute, and then you can ask. But it's better that you first listen me and carefully, and then we will start discussing it, because the most important part of this webinar is just to motivate yourself that the DevOps, the importance of the DevOps, and you can do that as well, because if I can do that, and most of the people like me can do that, so you should do that as well, because it's a very, very important part of this era. So I don't waste my time. Hello again, everyone. My name is Usman, and I'm the instructor for this webinar, and I'm around having the 9 years of IT experience. Mostly I've spent some time in the network side, in the voice over IP side, but before, I think 3 to 4 years ago, I have transformed myself from the pure IT voice side to the DevOps side. I've started learning different tools. Linux, I have learned Linux, Docker, and multiple DevOps tools, and especially I learned the cloud computing, especially the AWS, which I have learned and attempt the AWS certification. And after that, this certification, I'm fully transformed myself from the
pure IT side to the DevOps side. So I have around more than 2 years of teaching experience as well, because I have around 400. I didn't calculate it properly, but I have around 400 plus students, which I teach the AWS cloud computing. 2 certifications I will cover, and the DevOps part as well, because this batch, which is starting from the 9th of April, is my 5th DevOps batch. So mostly I'm currently working with the different clients. I'm working on the DevOps technologies, where I'm working on the Terraform, on the Kubernetes, on the Docker, on the Jenkins CI/CD pipelines. So these are the things which I'm continuously on a daily routine. I'm managing different platforms and providing my services on a different clouds, especially on the AWS cloud. So this is the small introduction. So let's start at DevOps. Okay, for the DevOps, I think first of all, we will discuss what exactly the DevOps is, why DevOps is important, and why we need to learn it, and why we need to move ourselves to the DevOps. First of all, the reason of the DevOps is that DevOps is just the platform where we are managing the different teams. The first team is the developers, and this is the combination of the developers and operations, because some time ago the developers are working isolatedly, separately, and the operations team is working separately. They didn't even talk, they even didn't engage themselves with their different things. So the most important part of the DevOps is that now the person is having an understanding of the development side as well as the operation side as well. So this is the thing which is included in different companies and adopt this DevOps technologies. So the person will manage and handle the different development and operations parts as well. So the main issue which is having with the DevOps is that sometime, sorry, if anyone have any question, then you should raise your hand, and mostly you should mute yourself, then I will ask you to unmute. Okay, sorry. So the DevOps is the part where the both technologies are engaged, and both of the person, the development side and operation side, sit together and decide what they wanted to do and how they can achieve it. Because just for an example, if any developer is just develop an application, like it's a Python application or Java application, the version they are using on their local laptop is a different as the versions on the production or on the staging or on the dev servers is a different. The main and basic clashes between these two teams is that the versions and the dependencies, the packages are different. They waste most of the time while just debating on it, that it's working on, the developer said that it's working on my laptop, why it's not working on the production server or on the staging server, but it's working on my server, my machine. The main issues, this is very small example, but this is the main issues with the DevOps resolved it. And secondly is that the operation side is saying that this is the same package, same versions I'm using, which you are using on your laptop, but it's not working on the servers. So these are the things which the developers is providing the platform to the developer, the same as the replicas of the production and the staging servers. The same environment is called the dev environment. The same copies, the same versions, and the same tools which we are using in the prod is provided to the developer that you should develop on it. And whenever you are able to execute these things properly, then it's mean that you can easily we can deploy it on a production or on staging servers. So this is one of the example which is resolved by the DevOps. The DevOps person is having an understanding of the application side packages. I'm a DevOps person, but I didn't even develop any application. But I know that
what is a Python. I know that what the Python packages are, how we can install it, how we can provide the platform to the Python developers, to the Java developers, how we can install the Java, how we can install the dependencies related to Java. So these are the few example and few things which we know that, and how we can install and automate all of these things, and how we can provide the platform to the developers that they can easily develop their application and don't waste their time on the deployments, because the deployments are the different things. Deployments are the things which is that the DevOps is the, which we can provide the these things. So let's, I'm not wasting this time on the examples. We will discuss the software development life cycle. The software development life cycle is that we can plan the applications, and then we will proceed to the analysis, design, and implementation, and all of these things which we can cover, and completely application is developed. This is the complete life cycle. This is the life cycle which we can. Sorry, can you please, everyone, please should mute. Otherwise, I will distracted, and I'm unable to focus properly while delivering this. So please. Okay. I'm talking about the software life cycle. Everything which whenever we build and building, that we will discuss, and we will plan the design and the architecture and a map of the building. So same as it is for the software development, we have a proper planning, then we will analyze, we will design, and we will implement these things, and the different stages of the life cycle. The limitations of the software life cycle is that we have a different, as I was saying that I just copied this image from the internet, and this is very close to the DevOps issues which we were facing and how we resolved it. The main thing is that the ops and the development, the barrier between these two teams, the development team and the operations team, we have a barrier between them. They don't even talk with each other and don't sit together to resolve these issues, because they just develop the applications, and the operations team is just deploying these applications on the environment. But whenever they face issues, they will point towards each other that this is the issue from your side, or this is the issue from your side. So this is the main and one of the example which we will resolve with the DevOps. And secondly, this is the example whenever the developer said that this code is working on my laptop, how it's not working on the prod or the staging server, but the operations team saying that it was working on the same versions we are using on the prod on staging servers, but it's not working. So it's mean that the code is not good, or the code quality is not good, that there is some issue on the code side. So these are the things which is wasting the times. The developers didn't even properly focus on the development, and operations didn't even properly focus on the deployments. So these are the things which is having issue, and with the DevOps we resolved it. The definition, I'm not properly follow or not like the definitions, reading definitions, but we will discuss it. Okay. ओके सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लिमिटेशंस को, ये ऑब्वियस लिमिटेशन है जो कि आई वाज वर्किंग एंड आई एम करंटली वर्किंग एंड मैनेजिंग माय टीम एज वेल. तो उसमें ये होता है कि हमें सम टाइम डेवलपमेंट और ऑपरेशन साइड के बहुत इश्यूज जो कि पहले थे, अब उनको बहुत हद तक हम रिजॉल्व कर चुके हैं. और एक्चुअल जो इसकी एक एग्जांपल होती है कि जिससे आपको इस चीज की समझ आती है कि आपकी डिप्लॉयमेंट्स और आपकी जो एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस है, डेवलपर्स की परफॉर्मेंस है, वो इंक्रीज होती है यूजिंग द ऑटोमेशन. द DevOps इज द मेनली फोकस ऑन द ऑटोमेशन थिंग्स, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, जिन टूल्स के थ्रू हम अपने सिस्टम को ऑटोमेट करते हैं. और सिस्टम को जिस तरह ऑटोमेट करेंगे तो लोगों का या आपके डेवलपर्स का, आपकी टीम का जो है वो टाइम
एक्स्ट्रा चीजों में वेस्ट नहीं होगा. They will focus on their development things and operation will focus on the deployments related things. So DevOps की जो डेफिनेशन है, मैंने कुछ सा बताया कि मैं इतना ज्यादा लाइक नहीं करता कि मैं रीडिंग करूं उन डेफिनेशंस को, बट ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे जो कि मुझे एक अच्छी लगी, मैंने इंटरनेट से कॉपी की, जिससे आपको मजीद थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो आईटी फील्ड के अंदर डेवऑप्स इसलिए ज्यादा पॉपुलर हुआ है. उसकी मेनली रीजन ये कि कंपनीज अपने काम के ऊपर ज्यादा फोकस कर पा रही हैं और उनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है, जिससे आपकी जो डेवलपमेंट का जो लाइफ साइकिल है, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया है, वो फास्ट हो गया है, जिसमें प्लानिंग से लेके आपकी पूरी एग्जीक्यूशन और टेस्टिंग और मॉनिटरिंग तक वो चीज आती है. वो एक पूरा लाइफ साइकिल की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गई है. सो दिस इज द मेन थिंग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द एवरीथिंग बिजनेस मैटर करता है, और बिजनेस मैटर तब करेगा या बिजनेस की परफॉर्मेंस तब होगी जब आपकी इश्यूज रिजॉल्व होंगे यूजिंग दीज टूल्स. तो डेवऑप्स इज द ऑटोमेशन. अब डेवऑप्स की मैं कुछ मार्केट की वैल्यूज डिस्कस करूंगा, और ये मार्केट की वैल्यूज रियली मैंने इंटरनेट से, प्रॉपर वेबसाइट से, उनके कुछ मैंने रेफरेंस लिंक्स भी यूज किए हैं, जिनको मैंने यहाँ पर मेंशन भी करूंगा. लेकिन ये मेंशन करने का मेनली रीजन ये है कि आप लोगों को मोटिवेट किया जा सके, आप लोगों को इस चीज के लिए मोटिवेट किया जा सके कि मार्केट इस टाइम किस तरफ जा रही है, इंटरनेशनल मार्केट किस तरफ जा रही है, लोकल मार्केट किस तरफ जा रही है, और हमारा टाइम क्या है. दिस इज द बेस्ट टाइम टू ग्रैब दिस और लर्न दिस टेक्नोलॉजीज. मैं याद है, अगर मेरे जितना कोई पुराना अगर होगा, 2013-14 की बात है कि जब नेटवर्क्स बूम के ऊपर था. नेटवर्क्स हर पर्सन CCNA, CCNP, CCBP इनकी तरफ जो है वो फोकस कर रहा था. उस वक्त जो हर पर्सन था, जिस तरह मैं भी यूनिवर्सिटी से फ्री हुआ और मैंने उस तरफ किया, तो उसकी रीजन से भी ये थी कि उस टाइम मार्केट में बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज. मार्केट सैचुरेट तब हुई जब सारे लोग चले गए और लोगों ने, यानी कि ऑब्वियसली सब ने उस चीज को ग्रैब किया, मार्केट की जो जॉब्स थी वो फुल हुई, और उसके बाद फिर इसी तरह सेम एज इट इज इस टाइम, दिस इज द टाइम, एंड आफ्टर द कोविड इट विल इंक्रीज. जैसे ही वो कोविड का ये केस आया, कि कोविड की ये जो वायरस था जिसने पूरी दुनिया को इम्पैक्ट किया, उसकी वजह से जॉब मार्केट में ऑटोमेशन की तरफ कंपनीज मूव हुई, लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ मूव हुए. उसकी वजह से मार्केट की जो वैल्यूज हैं, जो मार्केट की जो जॉब ओपनिंग्स हैं, उनकी जो एक बजट है वो डबल ट्रिपल बढ़ गया. तो इसीलिए दिस इज द टाइम मैं आप सबको मोटिवेट करूंगा एज अ ट्रेनर, एज अ ब्रदर, कि आप लोग अगर कोई हेजिटेट कर रहा है, तो ये वेबिनार सिर्फ इसीलिए था कि आप लोगों की वो हेजिटेशन दूर की जा सके, आप लोगों को चीजें दिखाई जा सके, बताई जा सके कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं. मैंने जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम भी बहुत ज्यादा सेग्रीगेटेड लर्निंग थी, यानी कि प्रॉपर कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सब चीजें मिल जाए. जब सेग्रीगेटेड लर्निंग से सिर्फ ये होता है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, लेकिन एक अगर जगह पे आप लर्न करते हो तो आपको सब चीजें प्रॉपर्ली मिल जाती हैं. तो मार्केट की कुछ स्टैट्स मैंने शेयर करूंगा अभी आपके साथ. ये मैंने इंटरनेट से लिया था, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है ग्लोबल मार्केट इनसाइट्स की. वो बता रहे थे कि 2021 में 30% जो इंक्रीज आया है डेवऑप्स का, ये डेवऑप्स मार्केट है, ये इसमें इंक्रीज जो है प्रॉपर शेयर्स में, जो यूएस मार्केट के अंदर है वो 65% इंक्रीज हुआ है, और 2028 पर तक ये ब्राजील मार्केट है, वैसे इन्होंने ब्राजील के भी स्टैट्स दिए हैं कि ओवरऑल जो है तकरीबन $7 बिलियन तक इस मार्केट में अभी ओवर बूम आएगा इन यूरोप. एशिया में भी 25% इंक्रीज आएगा, कि आपकी जो है वो प्रॉपर ग्रोथ के अंदर इस मार्केट में ग्रोथ अभी बहुत ज्यादा बाकी है. अभी बहुत सारी कंपनीज जो है वो मूव नहीं हुई प्रॉपरली तरीके से, अभी भी ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर्स को यूज कर रही हैं, अभी भी ऑटोमेशन को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रही. तो आहिस्ता आहिस्ता कंपनीज जा रही, जैसे जैसे कंपनीज मूव होंगी जॉब ओपनिंग ज्यादा होंगी. इस टाइम पाकिस्तान के अंदर भी सबसे ज्यादा कंपैरेटिवली मैं कहूँ 2-3 फील्ड्स में, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स, AWS और आपकी जो डेटा वेयर हाउसिंग और बिग डेटा से रिलेटेड है, ये 4-5 फील्ड सबसे ज्यादा बूम के ऊपर है, जिनमें सबसे ज्यादा मार्केट में सैलरीज जो है वो डेवऑप्स की हैं, और उनको कोई भी कैप्चर कर सकता है. ये मैंने एक और रिपोर्ट की कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाई हुई हैं. 2021 में जो मार्केट है वो $7 बिलियन के ऊपर है, और जो कि एस्टिमेट की जा रही है कि ये $330 बिलियन तक 2028 तक चली जाएगी. तो ये भी इसी वजह से है क्योंकि मार्केट में इस टाइम रिक्वायरमेंट ज्यादा है, कंपनीज जाना ज्यादा चाहती हैं. इसमें रेज आने की जो
चीजें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है कि ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है जिनकी वजह से ग्रोथ ज्यादा हो रही है। इसके अलावा मैंने एक और स्क्रीनशॉट लगाई है कि 2030 तक सॉल्यूशंस में कितना ग्रोथ मजीद आएगा और सर्विसेज में कितना ज्यादा आएगा। अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो मैं आपको ऑनेस्टली ये बता रहा हूँ कि डेवऑप्स के अंदर रहते हुए सर्विसेज का एक बहुत ज्यादा आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप लोग के कईयों के माइंड में होगा कि क्या हम डेवऑप्स से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। और अगर आप लोग रिपोर्ट पढ़ें फाइवर की भी, अपवर्क की भी, तो उनमें जो सबसे ज्यादा टॉप रेटेड जो फ्रीलांसर्स हैं वो इस टाइम डेवऑप्स या क्लाउड कंप्यूटिंग की हैं, जिनमें एडब्ल्यूएस बहुत ज्यादा ऊपर है। एडब्ल्यूएस की जो टास्क है, जो कि ओपनिंग्स आती हैं, जो कि जॉब रिक्वायरमेंट्स आती हैं या कोई टास्क आते हैं, वो बहुत ज्यादा है। और उस वजह से फिर उसके उसके रेट्स भी ज्यादा हैं और लोग उसको कवर करते हैं। नॉर्थ अमेरिका के जो डेवऑप्स के स्टैट्स हैं, ये मैंने मिक्स लिखे, मैं पाकिस्तान के भी थोड़े डिस्कस करूंगा एंड पे, कि 2015 से 2026 तक इसकी ग्रोथ मुसलसल बढ़ रही है। और ये मुसलसल बढ़ने की निशानी इस चीज की कि दिस इज द टाइम कि आप अभी लर्न करें। आप 2026 तक गुरु हो चुके होंगे इस चीज के, क्योंकि जैसे जैसे आप सर्विसेज पे काम करेंगे और आपकी जो है वो इंक्रीज होगी, क्या नाम है, लर्निंग इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा। एवरेज सैलरीज में ये सिर्फ एक आइडिया के लिए मैं दोबारा कह रहा हूँ, जस्ट टू मोटिवेट यू, कि कोई भी कर सकता है। अगर मैं इस टाइम अपने वेबिनार के अंदर अपनी कोई एग्जांपल देने लग जाऊं या अपना कोई स्टोरी सुनाने लग जाऊं कि मैंने कितना अभी तक इसको क्या नाम है, मैं कहाँ पर था 3-4 साल पहले और अब मैं किस लेवल के ऊपर हूँ या मैं किस सैलरी के ऊपर हूँ, तो लिटरली मैं अपनी ऑनेस्टली एग्जांपल दे सकता हूँ कि मेरा जो ग्रोथ है वो तकरीबन कह सकते हैं 300 to 400% इंक्रीज है। तो ये इसी वजह से है कि मैंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया और लर्निंग की। इस चीज पे नहीं रहते कि यार कौन क्या कह रहा है, आपको लर्न करना है अपने लिए। कंपनीज अपना बेनिफिट चाह रही होती है, आपको अपना बेनिफिट लेना है। आपको बेनिफिट ये लेना है कि आपको चीजें सीखनी है, चाहे छोटी कंपनी में बैठ के सीखे चाहे बड़ी में सीखे, ऑनेस्टी के साथ कंपनी को सर्व करें, लेकिन अपनी लर्निंग को, कर्व को कभी रुकने ना दें। आप जहां पर लर्निंग को रोकेंगे, ऑब्वियसली आपकी वैसे ही ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। ये इंटरनेशनल मार्केट की सैलरीज है। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, गेट लैब का मैंने एक स्टैट लगाए हुए हैं, कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके मैंने स्टैट्स यहाँ पर लगाए हुए हैं, जिन्होंने ये रेटिंग्स बताई हुई हैं। उनके अकॉर्डिंगली यूएस के अंदर जो एवरेज सैलरी है वो 121, ये पर एनम होती है, 121,835 ये है, जो कि एवरेज है। अगर मिनिमम में जाए तो वो कहते हैं कि 63 है। और अगर इससे भी ज्यादा, मैं लिटरली, मेरे एक दो यूएस में दोस्त हैं जो कि काम कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग $200,000 प्लस पर एनम वो कमा रहे हैं। तो इसीलिए ये ग्रोथ बहुत ज्यादा है। ये एक बड़ी नॉर्मल एवरेज है जो कि मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, 126 या 121, ये दो डिफरेंट मैंने स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं। तो ये एक है, और एक मैंने एक लिंक भी दिया है, आई विल शेयर दिस स्लाइड विद यू, यू कैन गेट इट और चेक इट एज वेल। अच्छा, पाकिस्तान की मार्केट के कुछ स्टैट्स हैं जिसमें एवरेज अगर सैलरी है, मैंने उसका लिंक भी लगाया है जिस वेबसाइट से मैंने लिया था। ये होता ये कि तकरीबन एवरेज पर एनम ये बन रही है, और जो कि पर मंथ बनती है तकरीबन 2 लाख पर मंथ, जो कि एवरेज है। अगर मैं एवरेज की बात करूं, इससे ज्यादा है। मैं डिफरेंट कंपनी से, मैंने आपको बताया, मैं काम कर रहा हूँ, और बहुत ज्यादा कंपनीज इस टाइम पे करने के लिए रेडी हैं। बहुत ज्यादा कंपनीज इस टाइम आपको अपॉर्चुनिटी देने के लिए रेडी हैं। लेकिन आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको अपने टूल, यानी कि जो जो चीजें हैं, जो चीजें कंपनीज को जरूरत है, आप उन चीजों के लिए रेडी हो। इस वेबिनार का पर्पस ये नहीं कि मुझे कंपनीज के लिए प्रॉपर्ली रेडी करना है, मुझे आपको रेडी करना है फॉर योर सेल्फ, कि आप रेडी हो, आप आए और आप चीजें सीखें, और आप चीजें सीख के कंपनीज में जा सकते हैं। अगर मैं जा सकता हूँ, मैं लिटरली कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा कभी भी, लेकिन अगर मैं चला गया हूँ, अगर मैंने सही टाइम पे लर्निंग की और सही तरीके से लर्निंग की, फोकस होकर लर्निंग की, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना काबिल हुआ कि अब तक जो है मैं टीच भी कर रहा हूँ, और मैं जो हूँ वो चीजें अभी भी लर्न कर रहा हूँ, तो कॉन्टिन्यूसली आई एम लर्निंग। तो मैं कल अभी क्यूबरनेटिस को मजीद पढ़ रहा था, और वो ऑब्वियसली मुझे लर्निंग रोकनी नहीं है। तो ये चीजें हैं अभी तक से रिलेटेड। आई नो कि इट्स, मैंने अभी तक कोई ज्यादा डेवऑप्स के अंदर नहीं घुसा, डेवऑप्स के फ्रेजेस से रिलेटेड अब पार्ट स्टार्ट होने लगा है। आपके कोई क्वेश्चन है, आप लोगों को लगता है कि यार ये चीजें मुझे और क्लियर करनी चाहिए पिछली चीजों से रिलेटेड, तो आप लोग अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप मुझे चैट पे जस्ट मैसेज टाइप कर दें, मैं रिप्लाई कर दूँ। और अगर आप लोग ओके सारे तो थम्स अप कर दें, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। मुझे बल्कि ज्यादा और एक कुछ, चीज
जी 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 एक चीज पूछनी थी मुझे मुझे ये बताएं कि सर डेवऑप्स इज फॉर स्पेसिफिक फील्ड लाइक कि क्लाउड के लिए डेवऑप्स होगा या किसी एक स्पेसिफिक साइट के लिए होगा, या डेवऑप्स डेवऑप्स इज फॉर एवरी ऑपरेशंस, मतलब आईटी में देयर आर मल्टीपल फील्ड्स ना। बिल्कुल नेटवर्क बिल्कुल। साइड पे भी हम लोग ये भी सुनते हैं कि डेवऑप्स नेटवर्क ऑटोमेशन में भी यूज हो रहा है, और हम्म। डेवऑप्स एडब्ल्यूएस साइड पे भी यूज हो रहा है। तो अगर हम लोग इसका माइंड पैटर्न बनाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे भी लोग जो हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, जैसे मैं खुद ऑब्वियसली। आईटी और वॉइस से बैकग्राउंड है, तो इसमें थोड़ा गाइड कर दें कि ये एग्जैक्टली है किस तरफ और हमें क्या करना चाहिए किस बैकग्राउंड के हिसाब से, और इसका कोई प्री रैक है या नहीं है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं इस तरह से दूंगा कि अम, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जिनसे भी मेरी बात होती है, जो कि मुझसे कॉन्टिन्यूसली कनेक्ट होते हैं ऑन लिंक्डइन और ऑन माय कम्युनिटी ग्रुप, उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर हमें ये बताएं कि क्या डेवऑप्स इज अ थिंग, या उसका कोई रिलेशन, यानी कि वो डेवऑप्स के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग आती है, क्लाउड कंप्यूटिंग सेपरेट चीज है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मैं कहूंगा कि ऑब्वियसली डेवऑप्स के अंदर ही आती है, क्योंकि देखिए डेवऑप्स आजकल कंपनी से कर रही है, कंपनीज मेजरली जो हम डेवऑप्स की बात कर रहे हैं, या ये वेबिनार में जिस चीज के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, ये है ओपन सोर्स डेवऑप्स टूल्स का। अब ओपन सोर्स डेवऑप्स टूल्स के अंदर मैं आपको अगर मैं जल्दी से नाम लेता हूँ तो लिनक्स का आता है, डॉकर का आता है, जेंकिंस का आता है, एनसिबल का आता है, क्यूबरनेटीज है, टेराफॉर्म और बहुत सारे टूल्स हैं। मैं इनकी बात, ये सारे ओपन सोर्स टूल्स हैं, ये डेवऑप्स के टूल्स माने जाते हैं जिनके थ्रू हम ऑटोमेशन करते हैं। लेकिन कंपनी ज्यादातर ऑटोमेशन करके उनको ऑन प्रेमिसिस पे ऑटोमेशन बहुत कम कंपनीज कर रही है, यानी कि अपने सर्वर्स मैनेज करके नहीं कर रही। कंपनी से करती है कि यार जब हमने ऑटोमेशन कर ली तो हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर हम डिप्लॉयमेंट्स क्विकली कर सके। तो डिप्लॉयमेंट्स करने के लिए वो क्या करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हैं, और क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे ऊपर नाम आ जाता है एडब्ल्यूएस। तो ऑटोमेशन हम करके उसको अपने पास रख नहीं लेंगे, ऑटोमेशन को कहीं डिप्लॉय तो करना है हमने। वो ऑटोमेशन करके हमें एक ऐसी यानी कि टूल्स चाहिए कि जिसके थ्रू हम क्विकली ऑटोमेट कर सकें और क्विकली उसके रिजल्ट्स देख सकें। तो रिजल्ट देखने के लिए क्विकली सर्वर बनाना, क्विकली क्विकली उसकी डेटाबेस बनाना, क्विकली स्टोरेजेस बनाना, क्विकली अपनी डोमेन्स को राउट करना, ये सारा कुछ हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। तो हम इसलिए मैं उसको डेवऑप्स के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग को डेवऑप्स का पार्ट समझता हूँ कि दिस इज द पार्ट जिसको आप इंटरनली यूज करते हो और फिर उससे आप बेनिफिट लेते हो। अच्छा, अब आपका अगला क्वेश्चन था कि हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, प्री रैक क्या होना चाहिए। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि लिनक्स इज दी प्री रैक फॉर द डेवऑप्स। क्यों लिनक्स ज्यादातर आती है कि हमारे मार्केट के अंदर 70 to 75, आप गूगल कर लेना, 70 more than 75% जो ग्लोबल मार्केट है उसके अंदर जो सर्वर्स यूज हो रहे हैं उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स यूज हो। विंडो बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स बहुत कम है, बहुत कम है। डॉट नेट के ऊपर यूज हो जाती है, डिफरेंट और टूल्स यानी एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड है। ज्यादातर जो 75 more than 75% है वो आपका यूज करता है क्या नाम है, लिनक्स को। तो लिनक्स में पहली बात है, आप लिनक्स से स्टार्ट करेंगे। मैंने किस तरह स्टार्ट किया था, आई जस्ट गिव यू द वन एग्जांपल। मैं क्योंकि वॉइस ओवर आईपी में काम करता था, तो वहां पर लिनक्स सी सर्वर्स के ऊपर हम काम करते थे। मैंने एस्ट्रिस के ऊपर काम किया है, कैमेलियो के ऊपर, फ्री स्विच के ऊपर, डिफरेंट टूल्स के ऊपर काम किया हुआ है। अब मैंने सेम वहां सर, पर, सेम मेरा भी ये हाँ बैकग्राउंड है। बिल्कुल। तो मैंने क्यों मैंने मैं जिस कंपनी में बिलोंग करता था, मैं उस कंपनी से बड़ी वास्तव में शायद कंपनी नहीं हुए, लेकिन दी बेस्ट कंपनी। लेकिन मेरा पर्सनली फीलिंग ये थी कि यार दिस इज द टाइम कि अगर मैं यहाँ से निकला तो मैं इससे बड़ी कंपनी में, पाकिस्तान में तो नहीं है, मैं किस में जाऊंगा। तो मेरा असल पर्सपेक्टिव था कि यार लिनक्स मैंने सीख ली, क्योंकि हम वॉइस ओवर आईपी में काम करते थे, लिनक्स में करते थे। मैंने डेवऑप्स के टूल्स सीखे कि यार ऑटोमेशन कैसे हो रही है कंपनीज के अंदर, गिट कैसे यूज हो रहा है, गिटहब कैसे प्रॉपर्ली काम करता है, डॉकर कैसे। मैंने फिर डॉकर स्टार्ट किया था, लिनक्स के बाद मैंने डॉकर स्टार्ट किया, क्योंकि लिनक्स से अगला काम, क्योंकि विजुअलाइजेशन पे काम करेंगे फिर डॉकर से। तो नामों से नहीं डरना है, पहली बात ये याद रखें। आपको नाम, अगर मैं जिस तरफ था जब मैंने स्टार्ट किया था, तो ऑब्वियसली उसमें ये नाम डराते हैं आपको कि यार ये इतने मुश्किल मुश्किल नाम है, डॉकर क्या चीज होगी, जेंकिंस क्या चीज होगी, क्यूबरनेटिस क्या होगा, टेराफॉर्म क्या। भाई कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ हिम्मत करके जंप करना है। सब अगर हम जैसे यानी कि बंदे सीख सकते हैं यार, कोई भी सीख सकता है, कोई भी सीख सकता है। तो इसीलिए आपने फिर डॉक्टर्स पे जाना है, फिर किस किस पे जाना है, वो सारे टूल्स के एंड पे मैं डिस्क्रिप्शन सारी डिटेल्स दूंगा। अभी हम डेवॉप्स के फेजेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारे टूल्स मैं आपको ओवरव्यू भी दूंगा, ये टूल्स करते क्या है, फिर उनकी स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगा, और अगर टाइम बना तो मैं आपको एक डेमो भी छोटा सा दे दूंगा, ताकि आप लोग को हिम्मत पकड़ के आप लोग जो है उसको लर्न करो, कहीं से भी करो, चाहे मेरे कोर्स से करते हो या किसी भी यूट्यूब की वीडियो से करते हो। डिस्ट्रैक्टेड लर्निंग होती है या जिस तरह भी है, वो मेरे अलग सेपरेट सेपरेट पार्ट है, लेकिन यू शुड स्टार्ट लर्निंग। ठीक है, ओके अदील।
ठीक है सर। सर और उसमें लेवल क्या होना चाहिए, मतलब बिगनर लेवल पे काम चल जाएगा जैसे कि आपने बताया वॉइप हम्म। में भी यूज हो रहा होता है, तो उसमें भी लिमिटेड वो होता है, मतलब हम लिमिटेड कमांड्स यूज करते हैं, लिमिटेड चीजें, मतलब बिगनर लेवल होता है बिल्कुल। हाँ। तो क्या अच्छा, उससे? जी। डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंट ऑटोमेशन होती है। वॉइप के अंदर पहले ऑटोमेशन नहीं थी, लेकिन अब लोग वॉइप के अंदर भी ऑटोमेशन ले आए हुए हैं। जब तक मैं काम करता था उस टाइम तक नहीं होती थी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उस टाइम तक वो ऑटोमेशन नहीं थी, यानी कि वहां पर क्या नाम है, पाइपलाइंस वाले कॉन्सेप्ट नहीं था डेवऑप्स, सॉरी, वॉइप के अंदर। लेकिन अब कंपनीज इतनी इंटेलिजेंट हो चुकी है कि उन्होंने भी इस टेक्नोलॉजी को, क्लाउड कंप्यूटिंग को ग्रैब किया, ऑटोमेशन को ग्रैब किया, और वो वहां पर पाइपलाइंस कर रही है। अब मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा, एंड पे क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन काफी लंबा हो गया। मैं बाकियों को बोर नहीं करना चाहता, इसलिए किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करे, फिर एंड पे इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन में डेप्थ में करूंगा, चाहे मुझे आधा घंटा ऊपर भी जाना पड़ा, आई विल डू दैट, नो प्रॉब्लम। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है जिसको लगता है कि यार भाई अभी टाइम पूछना चाहिए, वो पूछ सकता है। ओके है मेरे ख्याल से सबका। ओके, फिर हम चलते हैं डेवऑप्स के फेजेस के ऊपर। अच्छा, डेवऑप्स की फेजेस, मैंने जितना बताया कि सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के फेजेस हैं, प्लानिंग, कोडिंग, बिल्डिंग, टेस्ट, ये सारे सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल है। लेकिन इन इस यही प्रॉपर प्रोसेस जो है वो डेवऑप्स के लिए फॉलो होता है। अब किया क्या है डेवऑप्स ने, प्लानिंग से निकलते साथ ही कोड आता है, कोडिंग के लिए डिफरेंट डेवऑप्स के टूल्स हैं। आप बिल्डिंग में आ गए, बिल्डिंग के डेवऑप्स के टूल्स हैं। टेस्टिंग आ गए, टेस्टिंग के टूल्स आ जाते हैं। फिर आगे चलते हैं, रिलीज में ये टूल्स आ गए, फिर डिप्लॉयमेंट के टूल्स आ गए, फिर ऑपरेशंस के टूल आ गए, फिर मॉनिटरिंग के टूल्स आ गए। तो ये टूल्स हैं डेवऑप्स के, और हर स्टेज के ऊपर उन्होंने डिफरेंट टूल्स क्रिएट किए हैं। अच्छा, अब बात आती है कि डेवऑप्स में जो सबसे डिफिकल्ट चीज आमतौर पे हर स्टूडेंट को, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया और मैंने भी नोट किया है, वो लगता है कि यार इतने टूल्स हैं, कौन से टूल सीखने चाहिए, कौन से टूल्स ऐसे हैं जिनको सीख के हम एटलीस्ट हम डेवऑप्स इंजीनियर कहला सकते हैं, या हम अपने जंप इन कर सकते हैं इस मार्केट में। तो वो टूल्स हम एंड पे डिस्कस करेंगे डेवऑप्स के। तो लेकिन हर स्टेज के ऊपर टूल्स हैं। होता क्या है, आप डेवऑप्स पे जाते हैं, आप सबसे पहले क्या करते हैं, प्लान करते हैं। आपने एक एप्लीकेशन का प्लान कर लिया कि भाई मुझे एक पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन बनानी। आप प्लानिंग करने के बाद क्या करेंगे, कोड करना शुरू करेंगे, डिफरेंट टीम्स को बताएंगे भाई आपने ये एप्लीकेशन के फ्रंट एंड के ऊपर कोडिंग करनी है, बैक एंड पे करनी है, जो भी करना है। फिर आप उस कोड के पार्ट्स को जोड़ेंगे, फिर बिल्ड करेंगे, बिल्ड करने के बाद उसको टेस्ट करेंगे कि हाँ भाई ये चीजें सही चल रही हैं। वो चलने के लिए फिर आप रिलीज कर देंगे, जब आपको लगेगा कि यार ये सही चल रही है, उसके जो जो पार्ट सही है उनको रिलीज कर दो, वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। फिर रिलीज होने के बाद आप रिलीज करने के बाद उसको डिप्लॉय करेंगे प्रॉपर तरीके से, कि भाई आप डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन के ऊपर डिप्लॉय कर दिया। अब डिप्लॉय करने के बाद आप उसको आराम से बैठ नहीं जाएंगे आप, बल्कि जब आपके यूजर्स उसको ऑपरेट कर रहे होंगे, आप ऑपरेशन के दौरान उसको मॉनिटर करेंगे कि भाई उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, लोगों का एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है, उसके फीडबैक कैसे आ रहे हैं, हमारे यानी कि टूल्स किस हद तक जो है वो कंफर्टेबली यूज हो रहे हैं। तो ये चीजें प्रॉपरली, और हर स्टेज के ऊपर, हर फेज के ऊपर डिफरेंट टूल्स हैं, तो उन टूल्स को हम यूज करते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा स्टेजेस को डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि आजकल जो सबसे ज्यादा पॉपुलर टर्म यूज होती है वो टर्म होती है CI/CD। तो CI/CD के अंदर होता क्या है, मैं शॉर्टली एक्सप्लेन करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उसकी मैक्सिमम समझ आए। सबसे पहले जो स्टेज आती है डेवऑप्स की, वो आती है वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल, इसको सोर्स कोड मैनेजमेंट भी कहते हैं, और ये आप लोगों ने गिट का नाम सुना होगा, गिट हब कईयों ने ऑब्वियसली यूज किया भी होगा, और कई जो बिगनर्स हैं ऑब्वियसली जो उनके लिए न्यू भी होगा, क्योंकि आईटी वालों के लिए, डेवलपर्स को लगता होगा कि यार गिट और गिटहब तो बड़ी आम सी बात है। लेकिन आईटी के अंदर कई ऐसी कंपनीज अभी भी हैं कि जिनमें आईटी प्रोफेशनल्स के का ताल्लुक ही नहीं होता गिट और गिटहब, क्योंकि उनका काम डिप्लॉयमेंट्स की तरफ होता है, उनका काम हार्डवेयर मैनेजमेंट की तरफ होता है, उनका काम इस तरफ नहीं होता। तो उनके लिए मैं ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा। वर्जन कंट्रोल का मतलब क्या होता है, वर्जन कंट्रोल का मतलब ये कि देखो, जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सपोज कि सारे आप लोग जो है ना डेवलपर्स हैं, और डिफरेंट कोड के ऊपर, डिफरेंट जो एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। या मैं कह सकता हूँ कि अगर आप सब एक ही एप्लीकेशन के ऊपर काम करें, तो आप सबके कोड को डिफरेंट वर्जन्स के फॉर्म में स्टोर करना, और इसको स्टोर करने का मेनली पर्पज होता है कि मैं आपको ट्रैक कर सकूं, मैं आपकी चेंजेस को ट्रैक कर सकूं, आपके डिफरेंट कोड के डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट कर सकूं, ताकि अगर आपसे कोई गलती हो तो हम पिछले वर्जन पे जा सके, हम अगले वर्जन को यूज कर सके, करंट वर्जन को यूज कर सके, या पिछले वर्जन के ऊपर जा सके। तो प्रॉपर कोड को मैनेज करने के लिए वर्जन कंट्रोल यूज होता है, और इसके लिए जो टूल एडब्ल्यूएस कह रहा हूँ, डेवऑप्स के अंदर यूज होता है, वो हम लोग गिट को यूज करते हैं। गिट इज द टूल जो कि वर्जन कंट्रोल के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। हम अपने कोड को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, और उस कोड को सॉरी
अच्छा, हम उस टूल को यूज करते हैं जिससे हम अपने कोड को प्रॉपर तरीके से वर्जन्स की फॉर्म में ले आते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और अपनी चेंजेस को प्रॉपर ऑर्डर में लेके आ सकते हैं, ताकि हमारी जो मेन चेंजेस हैं उन पे कोई इम्पैक्ट ना आए और हमारा रिजल्ट देखे जा सके। तो ये एक मैं आपको ड्रॉ करके भी इंशाल्लाह समझाऊंगा कि डिफरेंटली कैसे काम किया जाता है। आपको एक क्विकली पेज पे ड्रॉ करके एक चीज समझाता हूँ कि वर्जन कंट्रोल का पर्पस क्या होता है। कि सपोज दैट कि ये आपका एक डेव एनवायरनमेंट है, ये आपका एक स्टेजिंग एनवायरनमेंट है और ये आपका एक प्रॉड एनवायरनमेंट है। ये आपका प्रॉड है, ये आपके पास एक स्टेजिंग एनवायरनमेंट है और ये आपका एक डेव एनवायरनमेंट। अच्छा, आपके पास तीन एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? एनवायरनमेंट का मतलब ये कि आपकी जो एप्लीकेशन डेवलपर्स डेवलप कर रहे हैं, अगर उन्होंने बैठ के, अगर वो आपके डेवलपर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर और उन डेवलपर्स ने बैठ के अपने चेंजेस को टेस्ट करना है, ये सारे डेवलपर्स हैं, मैं इनको प्रॉपर डिजाइन नहीं कर रहा, ना कंप्यूटर्स लगा रहा हूँ, ये सारे डेवलपर्स हैं। डेवलपर्स ने बैठ के काम करना है और उनको एक ऐसी लोकेशन चाहिए कि जहां पर उनकी चेंजेस जो है वो देखी जा सके। ये सर्वर्स हैं, तो वो क्या करेंगे? वो सबसे पहले अपने कोड को किसी एक रिपोजिटरी या किसी एक लोकेशन पे भेजेंगे, जिसको हम लोग आमतौर पे, मैं अगर एग्जांपल दूं तो गिटहब भी कह देते हैं, बिटबकेट भी है, गिटलैब भी है, डिफरेंट टूल यूज होते हैं फॉर द, इसको रिपोजिटरीज कहते हैं, ठीक है, रिपोज या रिपोजिटरीज में लिख देता हूँ। अब होता क्या है, हर डेवलपर अपने कोड को किसी रिपोजिटरी में सेव कर देता है और उस रिपोजिटरी में जब वो कोड पड़ा होता है, अब इस रिपोजिटरी के अंदर सपोज दैट कि मैं इस डेवलपर को कहता हूँ ये ए डेवलपर है, ये आपका बी डेवलपर है और ये आपका सी डेवलपर है। ए डेवलपर की ए ब्रांच है, बी की बी ब्रांच है, सी की मैं ब्रांचेस में नहीं जा रहा। आप लोग इंशाल्लाह जब गिटहब का में से, यानी हम लोग जब डेवऑप्स के कोर्स में आएंगे तो उसमें एक एक चीज डिस्कस करेंगे कि ब्रांचेस क्या होती हैं, रिपोजिटरीज क्या होती हैं, फिर कमिट्स क्या होती हैं, वो सारे गेट और गिटहब के पार्ट के अंदर वो यहाँ पर हम वहां पर हम ये कवर करेंगे। कि अभी जिनको ना समझ आए मुझसे वो सेपरेटली भी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है समझने की, क्योंकि मुझे पता है मिक्स ऑडियंस को समझाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। अच्छा, एबीसी यानी डेवलपर्स हैं, अपनी अपनी ब्रांचेस ए बी सी के अंदर कोड पुश करें, और यहाँ पर तीन ब्रांचेस हैं जिसमें से एक ब्रांच का नाम है डेव, दूसरी का ब्रांच का नाम है स्टेजिंग और तीसरी का नाम है प्रॉड। ऐसे होता नहीं है, प्रॉड को हम मास्टर भी कहते हैं आमतौर पे, हम मास्टर ब्रांच रखते होते हैं। तो और स्टेजिंग के लिए स्टेजिंग की होती है या डेवलप की होती है, डिफरेंट ब्रांचेस के नाम होते हैं, हर कंपनी अपने उसको फ्लो को फॉलो करती है, सो ये बहस नहीं है। अच्छा, अब होता क्या है, अब हमारी जो चेंजेस हैं, हमारे जो कोड की चेंजेस हैं, वो ए बी सी ब्रांचेस, सॉरी आप लोग को आवाज तो नहीं चली गई थी। अच्छा, अब डेवलपर्स ने अपने कोड को टेस्ट करना है, तो वो क्या करेगा, सपोज दैट कि यहाँ पर एक मैनेजर बैठा हुआ है या टीम लीड बैठा हुआ है, तो इनमें से एबीसी में से भी कोई टीम लीड हो सकता है, लेकिन चले मैं ये कहता हूँ यहाँ पर एक टीम लीड है, ये टीम में लिख देता हूँ, ये लीड है। उसने क्या किया, उसको जब चेंजेस चेक करनी है, वो एक पीआर भेजते हैं, वो पीआर मर्ज हो जाएगी डेव में। जब डेव में चेंजेस मर्ज होंगे तो हमारी पाइपलाइन एक सीआईसीडी पाइपलाइन होती है, जो कि फौरन डेव वाले सर्वर को कहेगी कि भाई आपकी चेंजेस आ गई, अब यहाँ पर बैठ के आप चेक कर सकते हो, या यहाँ पर जो आपका वेब यूआरएल है उसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन डेव में नजर आनी शुरू हो आपकी चेंजेस। अगर आपकी चेंजेस अप्रूव हो गई कि भाई वो चेंजेस ठीक है, अब स्टेजिंग में जा सकती हैं, आप क्या करेंगे, डेव से स्टेजिंग में चेंजेस मर्ज कर देंगे, आपकी चेंजेस स्टेजिंग में आनी शुरू हो जाएंगी। और जब आपकी चेंजेस प्रॉपर अप्रूव हो जाएंगी तो स्टेजिंग से हम उठा के मर्ज कर देंगे टू द मास्टर। उससे क्या होगा, आपकी चेंजेस पूरी प्रॉड में चली जाएंगी, जो कि दुनिया में एप्लीकेशन जो यूजर्स यूज कर रहे हैं उन तक चली जाएंगी। तो ये होता क्या है कि प्रॉपरली एबीसी हर डेवलपर की चेंजेस को आप मैनेज भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और उन चेंजेस को आप इसमें मर्ज करके आगे भेज भी सकते हैं। सो दिस इज दी वेरी, मैंने बड़ी लिमिटेड टाइम में एक छोटी सी एग्जांपल के साथ डिफाइन करने की कोशिश की है कि भाई हमारे आम तौर पे किस प्रोसेस के थ्रू वर्जन कंट्रोल मैनेज हो रहा होता है, यूज हो रहा होता है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो वो आपका ये सारा फ्लो होता है जो कि आपका वर्जन कंट्रोल के अंदर आता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन के अंदर आ जाता है कि हम अपने कोड को कंपाइल करते हैं, वैलिडेट करते हैं, कोड को रिव्यू करते हैं, उसके टेस्ट केसेस हम लिखते भी हैं और उनको चेक करके चला के देखते भी हैं। होता क्या है, बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर आता है कि मेरे पास जब यहाँ पर मैं कहता हूँ यार, यहाँ पर जब जाए ना डेव के अंदर, तो यहाँ पर कुछ हमारे पास टेस्ट केसेस ऐसे लिखे हो कि जो चलें तो वो रिजल्ट हमें दें, हमारे डेवलपर्स को। हमारे पास इस तरह का इंटीग्रेशन पार्ट होना चाहिए कि हमारी चेंजेस जब यहाँ से टेस्ट पास हो जाए
तो वो स्टेजिंग में चला जाए, और जब स्टेजिंग से पास हो जाए तो वो प्रोड में चला जाए। ये होता है CD के अंदर। लेकिन आमतौर पे पाकिस्तान के अंदर, मैं क्योंकि वो यानी कि सीनियर लेवल पे डेवऑप्स में काम भी कर रहा हूँ, डिफरेंट कंपनीज को सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आमतौर पे मैक्सिमम कंपनीज डेव से स्टेजिंग में तो चले जाते हैं, लेकिन स्टेजिंग से प्रोड में डायरेक्टली नहीं लेके जाते, पाइपलाइंस नहीं यूज करते। उसका मेनली ये रीजन ये है कि वो इस चीज से डरते हैं कि हमारा कोई इशू, कोई बग, कोई ऐसी चीज प्रोड में ना चली जाए जिससे हमारा प्रोड क्रैश कर जाए। हमेशा कंपनीज मैनुअल प्रोसेस को, इस प्रोसेस को फॉलो करती है, इस प्रोसेस को मैक्सिमम कंपनीज फॉलो करती हैं। उसका रीजन ये नहीं होता कि वो कर नहीं सकती, इसका रीजन ये होता है कि वो CD के अंदर, यानी कि इसके अंदर कॉन्टिन्यूस डिलीवरी और कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट के लिए थोड़ा सा डरती हैं, वो कंफर्ट फील नहीं करते। तो हमारे पास हर लेयर के अंदर डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं, जिन टूल्स को भी हम डिस्कस भी करेंगे। कॉन्टिन्यूस डिलीवरी और कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट में डिफरेंस ये होता है कि कॉन्टिन्यूस डिलीवरी के अंदर हम अपने जो चेंजेस हैं वो UAT के लिए तो ले जाते हैं, लेकिन हम अपने चेंजेस को प्रोड के अंदर नहीं लेके जाते। जो प्रोडक्शन लेवल के चेंजेस होते हैं उसको हम कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट कहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा 2 कंपनीज पॉपुलर मानी जाती हैं कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो 2 कंपनीज हैं फेसबुक और नेटफ्लिक्स। ये 2 कंपनीज ज्यादा पॉपुलर मानी जाती हैं, जो कि ये दावा करती हैं कि उनके डेवलपर का कोई भी चेंज अगर तमाम स्टेजेस से प्रॉपर तरीके से गुजर जाए तो उनका चेंज डायरेक्टली प्रोड के अंदर जा सकता है। कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट वो फॉलो करते हैं। तो इसीलिए कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट आसान नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई चेंज या कोई इशू अगर आपका चला गया तो आपकी प्रोड में इशू आ सकता है। लेकिन अगर आपके टेस्ट केसेस प्रॉपर लिखे हुए हैं, आपकी तमाम स्टेजेस प्रॉपरली डिफाइंड है, तो आप अपनी चेंजेस को डायरेक्टली प्रोड में लेके जा सकते हैं, जिसको हम कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट के उसके अंदर लेके जाते हैं। और इस तमाम स्टेजेस के अंदर कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग भी आती है कि हम हर स्टेज को कॉन्टिन्यूस मॉनिटर करते हैं, अदरवाइज हम प्रॉपर तरीके से सर्व नहीं कर सकते। हम प्रॉपर तरीके से आप किसी को सर्व नहीं कर सकते कि अगर हम प्रॉपर तरीके से कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग को फॉलो ना करें। तो मॉनिटरिंग के लिए भी डिफरेंट टूल्स होते हैं, जो कि डेवऑप्स के टूल्स हैं, जिनको अब हम डिस्कस करेंगे अपनी इस स्लाइड के अंदर। जो डेवऑप्स के टूल्स हम डिस्कस करेंगे अभी 5-10 मिनट में, 15 मिनट तक जो है वो डिस्कस करूंगा, वो टूल्स पॉपुलर टूल्स हैं। अदरवाइज ऑब्वियसली हर कंपनी में मेरे स्टूडेंट्स, जब मैं पढ़ा भी रहा होता हूँ सर यानी कंपनीज के अंदर काम कर रहे होते, तो मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप जो है वो ये वाला टूल नहीं पढ़ा रहे, या ये वाला टूल नहीं कवर करा रहे, या ये जो चीज, क्योंकि देखें अभी जो टूल्स मैं डिस्कस करूंगा ये वो टूल्स है जो कि पॉपुलरली हर कंपनी में यूज हो रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 100% यूज हो रहे हैं। अब आगे जाके आपको डिफरेंस दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि इनके सब्स्टिट्यूट टूल्स कौन कौन से जो हैं वो अवेलेबल हैं इन अ मार्केट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिनक्स। लिनक्स क्या होती है, मैं लिनक्स को डिस्कस करता हूँ, फिर गिट और डॉकर को डिस्कस करूंगा। लिनक्स क्या चीज है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने जिस तरह बताया अभी थोड़ी देर पहले भी, कि दुनिया में मोर देन 75% कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस अपनी एप्लीकेशंस के डिप्लॉयमेंट्स के लिए, सर्वर्स मैनेजमेंट के लिए और हर चीज के लिए ज्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर कंफर्ट फील करते हैं अपन कंपनीज जो है वो डिप्लॉयमेंट्स की, क्योंकि ये एक तो ओपन सोर्स है। कोई भी कंपनी ओपन सोर्स लिनक्स को यूज करके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकता है। इसका मतलब, ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि इसका जो सोर्स कोड है वो इजीली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। अगर आप इतने कैपेबल हैं और आप अपने नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अपने नाम से भी बना सकते हैं, उसके कर्नल में भी जाके चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि वो ओपन सोर्स है। दुनिया में यूज होने का मेनली रीजन ये कि इसकी जो क्या नाम है, रिलायबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। लोग कहते हैं वायरस अटैक्स और दूसरी चीजों में ये कम इफेक्ट होता है, ज्यादा इफेक्ट होता है लेकिन कम होता है। लोग पहले कहते थे कि भी इस पे वायरस नहीं आ सकता, इस पे ऑब्वियसली वायरस आता है, लेकिन इसके लिए भी मालवेयर और डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं जो कि इसको वल्नरेबिलिटी से क्लियर करने के लिए यूज होते हैं। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा रिलायबल जो है वो माना जाता है फॉर द डिप्लॉयमेंट्स ऑफ द डिफरेंट एप्लीकेशंस। लिनक्स हमारे कोर्स में भी और दुनिया में जो डेवऑप्स की मार्केट है उस पर भी, अगर आप मुझे ये कहें कि सर आपको विंडो को कवर करना चाहिए, लिनक्स को नहीं करना चाहिए, तो मैं इसका आंसर दूंगा कि बिल्कुल मैं यूज नहीं करूंगा विंडो को ज्यादा। मैं विंडो को ज्यादा यूज नहीं करूंगा, ज्यादा प्रमोट नहीं करूंगा। लिनक्स को प्रमोट करने की रीजन ये कि कंपनी जब लिनक्स यूज करे तो हम विंडो वाले के ऊपर जाके क्या करें। अभी तक डेवऑप्स की मैंने जितने क्लाइंट्स के, मैंने 7-8 डेवऑप्स के डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ, इंटरनेशनल लोकल क्लाइंट्स के साथ काम किया है। लिटरली मुझे कभी भी कहीं पे भी एक्सटेंसिव लेवल के ऊपर
विंडोज यूज नहीं करते हुए को नजर आया। बहुत कम एप्लीकेशंस है जो कि विंडो बेस्ड है, ज्यादातर लिनक्स यूज कर रही होती है, इसलिए लिनक्स हमारे इस पूरे कोर्स के अंदर लिनक्स यूज होगा, और लिनक्स का बेसिक से लेके इंशाल्लाह उसके एडवांस लेवल तक हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन ये नहीं कि लिनक्स 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 इज अ ह्यूज थिंग। लिनक्स के अंदर अगर आप ये कहें कि बिल्कुल फायरवॉल लेवल के ऊपर, इसके जो फर्मवेयर लेवल के ऊपर अगर आप कुछ चीजें देखें तो वो क्या होती हैं, तो वो हम ऑब्वियसली ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम डेवऑप्स के बाउंड्री के अंदर रहते हुए, रिक्वायरमेंट्स के अंदर रहते हुए हम डेवऑप्स के लिए लिनक्स को पढ़ेंगे भी, और हम लोग उससे रिलेटेड जो है वो टास्क भी परफॉर्म करेंगे लिनक्स के लिए। अब बात करते हैं गिट क्या होती है। गिट जो है वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम को मैंने काफी डेप्थ में भी एक्सप्लेन भी किया है कि हम अपने कोड के डिफरेंट वर्जन्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को, छोटे प्रोजेक्ट्स को या बड़े प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए, उनके डिप्लॉयमेंट्स को मैनेज करने के लिए, ताकि एक डेवलपर का कोड दूसरे डेवलपर के साथ क्रैश ना करे, क्लैश ना करे, इश्यूज ना क्रिएट करे, प्रॉपर ट्रैकिंग के लिए, प्रॉपर उसकी लॉगिंग के लिए हम लोग जो है वो गिट को यूज करते हैं, ताकि हमारे पास एप्लीकेशन के डिफरेंट वर्जन स्टोर हो और हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज कर सकें। एक प्रॉपर मैनेज करेंगे कोड को तो तभी हम अपनी एप्लीकेशन के की डिप्लॉयमेंट तक जाएंगे ना। अगर कोड ही प्रॉपर मैनेज नहीं है, उसमें काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, काफी इश्यूज हैं, प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली हम लोग अपनी डिप्लॉयमेंट तक नहीं जा सकेंगे। तो इसीलिए हम गिट को यूज करते हैं। गिट जो है वो भी ओपन सोर्स है, आप उसको यूज कर सकते हैं। लोग गिटहब किस तरह यूज होता है, गिटहब की बात करूं या मैं अगर बिटबकेट की बात करूं या मैं गिट लैब की बात करूं, तो ये सारे टूल्स जो हैं वो रिपोजिटरीज हैं, ऑनलाइन कह सकते हैं या क्लाउड बेस्ड रिपोजिटरीज हैं, कि आप अपने कोड को वर्जन कंट्रोल तो कर रहे हैं, उसके कंट्रोल तो वर्जन तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो वर्जन आपको मिलेंगे कहाँ पर, वो रखे कहाँ पर जाएंगे। तो कोड को हम किसी क्लाउड रिपोजिटरी के ऊपर रख लेते हैं, जिसमें गिट आता है, गिटहब आता है, जिसमें बिटबकेट आता है, जिसमें गिट लैब आता है, और बहुत सारे हैं। और अगर मैं क्लाउड की बात करूं तो AWS का अपना वर्जन कंट्रोल यानी कि रिपोजिटरी, ऑनलाइन रिपोजिटरी अवेलेबल है, जिसका नाम है कोड कमिट। AWS क्या कहता है कि अपने यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर कहता है कि जब आप AWS के ही सर्वर यूज कर रहे हो, AWS के ही जो है वो डेटाबेस यूज कर रहे हो, स्टोरेज यूज कर रहे हो, सो व्हाई यू आर यूजिंग गिटहब और व्हाई यू आर यूजिंग बिटबकेट और अदर टूल्स। तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आपको सेम एज इट इज, जैसे वहां पर ब्रांचेस बनती है, जैसे वहां पर रिपोजिटरीज बनती है, जैसे वहां पर कमिट्स होती है, सेम एज इट इज AWS का टूल है कोड कमिट, वो भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे दुनिया में टूल यूज होते हैं, इसी तरह एज्योर में भी और GCP में भी अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं डॉकर की। अब थोड़ा सा एडवांस पार्ट आएगा, अब थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये वो पार्ट है जहां से प्योर डेवऑप्स स्टार्ट होती है। ये दो टूल्स को समझने के इजी भी होते हैं कंपैरेटिवली, और इनको हर बंदा तकरीबन यूज कर रहा होता है, आमतौर पे आम रूटीन में भी यूज कर रहा होता है। लेकिन ये टूल्स वो टूल्स हैं, अब जो टूल्स आएंगे जो कि आपको प्योरली डेवऑप्स के अंदर यूज करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज हाईलाइट मैं जरूर करूंगा, अगर आप में से डेवलपर्स हैं और वो अच्छी कंपनीज के अंदर ऑब्वियसली काम कर रहे हैं, तो आप लोग को कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी के अंदर ये भी सुनने का मौका मिला होगा कि भाई डेवलपर को भी डॉकर आनी चाहिए। बल्कि डेवलपर्स आजकल डॉकर फाइल्स और ये क्रिएट भी कर रहे होते हैं। अगर कोई है तो वो चैट पे एग्री भी करे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जिन कंपनी से काम कर रहा हूँ उनमें मैंने बहुत सारे डेवलपर्स को देखा जो डॉकर फाइल्स क्रिएट कर रहे होते हैं, जो कि यानी कि कंटेनर्स क्रिएट कर रहे होते हैं, किसी ना किसी जगह के ऊपर जरूर कर रहे होते हैं। तो आई विल अप्रिशिएट। जी जी, क्वेश्चन बताएं। आपने कहा कि AWS का कोड कमिट है, हम तो अपना कोड AWS की रेपो पर, दोबारा थोड़ा सा बताएं, आपकी वॉइस में थोड़ी डिस्टॉर्शन है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हम AWS के उस क्यों रेपो पे अपना कोड क्यों रखे, जो उनका अपना रेपोजिटरी मैनेजमेंट सिस्टम है। बहुत अच्छा आंसर है, यानी आंसर नहीं क्वेश्चन है। आंसर मैं देता हूँ। क्वेश्चन आपका ये कि हम वो आप कह रहे हैं कि हम क्यों AWS की जो है वो अपना कोड जो है वो AWS की रिपोजिटरी में रखें। लेकिन आपसे मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि आप मुझे बताएं कि आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, आप कोई ना कोई ऑनलाइन रिपोजिटरी यूज करते होंगे, गिटहब यूज करते होंगे, बिटबकेट या गिट लैब यूज करते हैं। जी, गिट लैब यूज करते हैं। अब मैं गिट लैब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि ऑब्वियसली ना तो गिट लैब आपकी कंपनी का है, ना गिटहब आपकी कंपनी का होगा, ना बिटबकेट आपकी कंपनी का होगा। ऑब्वियसली वो भी एक ऑनलाइन रिपोजिटरी है, जिस तरह वो क्लाउड है, इसी तरह AWS एक क्लाउड रिपोजिटरी है। तो
कंपनीज ना तो अपना कोड कंफर्टेबल फील करती हैं गिट लैब पे रखते हुए, ना उसके ऊपर बिटबकेट के ऊपर, ना गिट लैब के ऊपर, ना गिटहब के ऊपर। लेकिन गिट लैब में थोड़ा डिफरेंस ये आ जाता है कि गिट लैब आपको लोकल गिट लैब भी प्रोवाइड करता है, कि आपको पूरा कोड प्रोवाइड कर देता है, आप अपनी मर्जी का अपनी कंपनी के अंदर अपना लोकल गिट लैब भी सेटअप कर सकते हैं, लोकल रिपोजिटरी भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा है, जिन्होंने यूज किया होगा ऑब्वियसली उनको आइडिया होगा। तो बात ये आती है कि अब आता हूँ कि AWS में क्या फर्क है। AWS में फर्क ये आ जाता है कि यार AWS कहता है कि आप देखें, आपने CI/CD पाइपलाइंस भी डिप्लॉय की हुई है, डॉकर भी इंप्लीमेंट किया है, जेंकिंस भी CI/CD सब कुछ इंप्लीमेंटेशन की हुई है, आप सर्वर भी AWS का यूज कर रहे हैं, आप डेटाबेस भी AWS की यूज कर रहे हैं, आप स्टोरेज भी AWS की यूज कर रहे हैं, सब कुछ AWS की। तो आप पूरी AWS की बाउंड्री से निकल कर किसी और क्लाउड पे यानी कि गिटहब के ऊपर या बिटबकेट या गिटलैब के ऊपर क्यों जाकर रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, हालांकि AWS अपना भी रिपोजिटरी प्रोवाइड कर रहा है। तो बात वहां पर ही आ जाती है। तो जब आप बाहर, तो AWS सिर्फ इसलिए प्रमोट करता है कि आप वो यूज करें। जिस तरह आपके लिए गिटहब पे कोई सिक्योरिटी मैन ही, जिस तरह AWS गिटहब आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, उसी तरह AWS आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। वहां पर भी टोकन क्रिएट होता है आपके लॉगिन लोग के लिए, AWS के अंदर AWS की क्रेडेंशियल्स क्रिएट होते हैं जो कि आपको लॉगिन की एक्सेस देती है। जब आप कोई कोड पुश करते हैं या कमिट करते हैं या कोई चेंज करते हैं, तो वो जिस तरह चेंजेस होती है उसी तरह चेंजेस आपकी गिट उसके अंदर भी होती है, AWS के ऊपर भी है। तो जिस तरह आपके लिए गिटहब एक क्लाउड के ऊपर पड़ा हुआ है, उसी तरह AWS कोड कमिट एक क्लाउड है। ठीक है। मैं सॉरी, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, ये अब लेट्स सपोज मैंने ऑन प्रेमिसेस सेटअप किया हुआ गिटलैब, Okay, तो perfect. मुझे सिक्योरिटी फील होती है कि यार कोड मेरा सेव पड़ा है, सिक्योर है यहाँ पे, इस सिनेरियो में। हाँ, ये सिनेरियो मैंने इसीलिए जब वो गिटलैब का जिक्र किया ना कि गिटलैब तो ऑनलाइन लोकल भी सेटअप हो जाता है, तो ये मैंने इसीलिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया था कि नो डाउट अबाउट इट, कुछ भी कह लें हम लोग, मैं इस बात से डेवऑप्स का वेबिनार कराते हुए ये आपको अभी ये कमिट करता हूं कि अगर आपका सब कुछ ऑन प्रेमिसेस में पड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा सिक्योर है, ऑब्वियसली वो ज्यादा सिक्योर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन डेवऑप्स की ऑटोमेशन लोकली ऑन प्रेमिसेस में भी कंपनीज कर रही हैं। लेकिन उसमें क्या आ जाता है, उसमें लोगों की ऑब्वियसली जो टेंशन है ना वो ज्यादातर मैनेजमेंट में चली जाती है। वो टाइम वेस्ट आपका सर्वर मैनेजमेंट में, उनकी मेंटेनेंस में, उसकी टीम बिल्डिंग में, उसकी यानी कि उसकी मैंने जोंग डाटा सेंटर में भी काम किया हुआ, मतलब मुझे आइडिया है कि भाई वहां पर आपको क्या क्या कुछ कूलिंग फैक्टर, इंटरनेट फैक्टर, बैकअप फैक्टर, पावर फैक्टर, हर फैक्टर्स वहां पर आ जाते हैं। तो कंपनी इसलिए क्लाउड पे गई ना, वो क्लाउड कंप्यूटिंग का वेबिनार में मैं ज्यादातर ये चीजें एक्सप्लेन करता होता हूँ। तो बात ये आती है कि अगर आपका लोकल पड़ा हुआ तो ऑब्वियसली वो ज्यादा सिक्योर है। लेकिन अगर आप मुझे खुद बताएं कि ज्यादा कंफर्ट कंपनीज आप फील करती हैं कि भाई वो बिलीव करते हुए क्लाउड पे रखती है अपने कोड को, और मैक्सिमम कंपनीज, मैं जिस यूके की कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ वो $1 मिलियन कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है, और वो भी अपना कोड वहां पर रखती है, वो भी गिटहब को यूज कर रही है सारी कोड मैनेजमेंट के लिए। हालांकि मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हालांकि वो उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर AWS के ऊपर है, लेकिन स्टिल दे आर यूजिंग गिटहब। वो सिर्फ इस वजह से वो कहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा वैसे हुआ नहीं कि पूरा का पूरा AWS डाउन हो गया तो हमारा कोड हमारे पास नहीं रहेगा, तो इसलिए वो एक बैकअप कह सकते हैं कि वो गिटहब का, हालांकि हुआ ऐसा कभी नहीं है। मैं इतने अच्छे से काम कर रहा हूँ, AWS पूरा कभी इकट्ठा डाउन नहीं हुआ। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स, ठीक है, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ। अच्छा, अब मैं मुझे एक दो लोगों ने एग्री भी किया है, जो कि मैं डिस्कस कर रहा था कि डेवलपर्स को भी पुश करते हैं डॉकर फाइल्स लिखने के लिए। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि यार आपने कोड कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपको ही पता है कि पैकेजेस कौन से यूज हो रहे हैं आपके कोड के लिए, आपकी डिपेंडेंसीज कौन सी यूज हो रही है, कौन कौन सी चीजें चाहिए, requirements.txt की फाइल में क्या क्या पैकेजेस डालने, उनके वर्जन कौन कौन से डालने, वो आपको पता है। तो आप डॉकर फाइल लिख लो, डॉकर फाइल लिखना बहुत आसान है। तो अब बात करते हैं डॉकर है क्या। मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा डिस्कस करने लगा था कि डॉकर क्या चीज है। डॉकर की आमतौर पे एग्जांपल जो ज्यादातर लोग देते हैं ना, वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और मैं भी यहीं से करूंगा। वो डिस्कस करते हैं कि वीएम में, वर्चुअलाइजेशन में और डॉकर में क्या डिफरेंस है। यानी ये मैं डॉकर नहीं कहूंगा, इसको असल में कहना चाहिए कंटेनराइजेशन, कंटेनर्स में, क्योंकि डॉकर इज नथिंग, डॉकर तो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। डॉकर इज जस्ट द ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंटेनर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जिक्र हो जाता है कि कंटेनराइजेशन क्या होती है। कंटेनराइजेशन कहते हैं कि वीएम्स के लिए होता क्या था कि वीएम्स के लिए अगर आपने वर्चुअलाइजेशन पे किसी ने VMware के ऊपर काम किया तो उसमें होता क्या है, आप VMware पे जाते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक जो है ना
होस्ट मशीन आपका लैपटॉप है, सपोज दैट आप अपने लैपटॉप में एक होस्ट मशीन यानी कि लैपटॉप के ऊपर आपके पास जो लैपटॉप है उस पर एक ओएस चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह मेरे पास इस टाइम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ विंडो के ऊपर, तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है। मैं क्या करूंगा, मुझे अगर ये सेटअप करना है, मैं जाऊंगा जाके VMware या वो जो ओरेकल का होता है उसको मैं वर्चुअल मशीन्स जो होती हैं उसका एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँ। यहाँ पर कर दूंगा VMware ऐसा लिख लेते हैं, VMware है या कोई भी, मैं वो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा। मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, आप लोगों ने किए ही होंगे ऑब्वियसली, कईयों ने किए होंगे, हम क्या करते हैं, हम एक कहीं से नेट से ना किसी से अपने दोस्त से पकड़ते हैं कि यार मुझे ना युबंटू का ISO इमेज दे दो। अब युबंटू का जो ISO इमेज है, अगर अच्छा इमेज आप उठाओ, अगर वो 2-3 किस्म के होते हैं, एक CLI बेस होते हैं, एक जो है वो DVD यानी कि वो जो प्रॉपर लाइव होते हैं, उसमें क्या होता है वो डेस्कटॉप पे प्रोवाइड करते हैं। तो मैं कहता हूँ यार मुझे ना युबंटू का ना ISO इमेज चाहिए, ISO इमेज कहते हैं इसको, वो चाहिए। और आप लोग में से जो लिनक्स बेस यानी कि काम करते हैं, आप लोग खुद इससे एग्री भी करेंगे। आप लोग ऐसे बताएं, नॉर्मल जो उसका साइज होता है ना, अच्छा इमेज का साइज वो 3 to 4 या 5 या 7 तक मैंने देखा है, वैसे इससे भी ज्यादा देखा है, GB का होता है आमतौर पर, अप्रोक्सीमेटली मैं कह रहा हूँ साइज होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जाते हैं, उसको पहले यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर VMware, VM के ऊपर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फिर जाके आप अपनी पहले इंस्टॉल करते हैं, उसके ऊपर फिर अपनी एप्लीकेशन को सेटअप करना शुरू करते हैं, डिपेंडेंसीज, पैकेजेस, सब कुछ करना शुरू करते हैं। और ये काफी हैवी होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें आप एक साइज डिफाइन करते हैं कि भाई मुझे, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कहता हूँ कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो, उसकी जो CPU है वो तकरीबन कोई 8 CPUs हैं, और मेरी जो रैम है वो तकरीबन कोई 32 GB रैम है, चलो 16 कर लेते हैं, ज्यादा नहीं रैम का है। मैं यहाँ पर जब क्रिएट करूंगा वर्चुअल मशीन, मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा कि भाई मुझे मेरी VM को जो है ना तकरीबन कोई तुम 4 GB दे दो। फिर इसी तरह मैं क्या करूंगा, मैं एक और VM क्रिएट करूंगा, अगर मुझे कोई और एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है मैं उसको भी करूंगा, फिर इसी तरह मुझे एक और करनी है उसको भी करूंगा। यानी कि आपको जब भी कोई VM क्रिएट करनी है, आपको सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फिर आपको ये सब कुछ डिफाइन करना है, और उसके बाद फिर, और अगर आपने 4 दे दिए, जो कि दिए नहीं जाने, क्योंकि अगर आपने दे दिए तो आपका होस्ट मशीन कितने प्रोसेसेस यूज करेगा, वो तो यूज ही नहीं कर सकेगा, तो इसीलिए वो दे नहीं सकेगा। आपकी रिसोर्सेज आपके होस्ट मशीन पे डिपेंडेंसी ज्यादा है, और अगर इन्होंने यूज कर लिया तो आप ये सबको नहीं दे सकते 4 GB। यानी कि यहाँ पर टेंशन और काम यानी कि मैनेजमेंट थोड़ी ज्यादा थी। कंटेनराइजेशन के अंदर क्या होता है, कंटेनराइजेशन के अंदर ये होता है कि आप सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। आप क्या करते हैं, एक होस्ट मशीन पकड़ते हैं, एक सर्वर होस्ट मशीन जिसके ऊपर आपका सर्वर है या होस्ट है, ये उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, सपोज दैट कि अगर विंडो भी चल रहा है कोई भी, मैंने कहा मेरे पास लिनक्स चल रहा है, उसके रिसोर्सेज भी यही हैं। उसके ऊपर आपने एक सबसे छोटा सा एक सॉफ्टवेयर है जो कि मेरा कुछ MBs का है, उसका नाम है डॉकर। वो बहुत छोटा सा है, वो कोई ज्यादा रिसोर्सेज लेता भी नहीं है, VMware से तो बहुत ही लाइट है। उसका नाम है डॉकर। आप डॉकर इंस्टॉल करेंगे और डॉकर के ऊपर आप चुप करके कंटेनर्स चलाना शुरू कर। यहाँ पर लेयर्स ज्यादा है, मैंने अभी लेयर्स सारी बनाई नहीं है। अगर आप लोग को जिसने यहाँ पे काम किया वो एग्री करेगा मेरे साथ कि यहाँ पर अभी 3-4 लेयर्स और थी, जिसके बाद आपकी एप्लीकेशन रेडी होती। मैंने ये वो लेयर्स यहाँ पे लिख दी हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप आओगे, आपको अगर एक ऐसी एप्लीकेशन चाहिए जो क्लाउड पे पड़ी हो, एक क्लाउड में यहाँ बना देता हूँ, और वो एप्लीकेशन है, सपोज दैट कि मेरी पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन है, या मैं कहता हूँ चले मुझे अपाची चाहिए, मुझे एक वेब एप्लीकेशन चाहिए, मुझे अपाची इंस्टॉल करना है, मेरे पास अपाची पड़ा हुआ है, MySQL पड़ा हुआ है क्लाउड के ऊपर। ये आपको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पर अभी जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, क्लाउड से ये जो मैंने चीजें लिखी हैं, ये इमेजेस, इनको इमेजेस कहते हैं। क्लाउड पे आपके इमेजेस पड़े हुए हैं, आपने इन इमेजेस को उठाना है। ये मैंने लिखना जरा शुरू कर दिया, गलत हो गया। इन इमेजेस को आप लाइट वेट कुछ MBs के इमेजेस को उठाएंगे, यहाँ पर एक कंटेनर क्रिएट कर, इसी तरह एक कंटेनर यहाँ क्रिएट कर देंगे। वो ये मेरा अपाची बेस है, ये मेरा सपोज दैट के कंटेनर जो है ना वो MySQL DB है, ये DB है, मैं लिखना कर रहा हूँ, ये मेरा वेब है,
ये कंटेनर्स, और ये इतने लाइट वेट कंटेनर्स होते हैं कि इनको क्रिएट करना आसान है, डिस्ट्रॉय करना आसान है। इनको इंटरनेट से आप इनके इमेजेस उठाओगे, इमेज से कंटेनर बना लोगे, इमेज से कंटेनर बनता है। तो बात असल में करने की ये कि ये इतने लाइट वेट होते हैं और ये इनके रिसोर्सेज इतने, ये सिर्फ अब इनका कोई रिसोर्स डिफाइन नहीं करना होता। कंटेनर क्रिएट करते हुए आप कोई रिसोर्स डिफाइन नहीं करते कि मेरे कंटेनर को इतने जीबी दो, रैम इतनी, सीपीयू दो, इसने जितनी इसको चाहिए होगी ये होस्ट मशीन से ले लेगा, और ये लेता भी एमबीज के अंदर है। और कंटेनर्स, एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से आइसोलेटेड होते हैं, यानी कि उनको पता भी नहीं होता कि वो एक ही सर्वर के ऊपर या एक ही होस्ट मशीन के ऊपर है। लेकिन अगर आपको कम्युनिकेट कराना है तो आप इनको आपस में कम्युनिकेट भी करवा सकते हो विदाउट डूइंग एनी मेजर कॉन्फ़िगरेशंस। आपको सिर्फ एक नेटवर्क क्रिएट करना है, दोनों का नेटवर्क सेम करना है, एंड देन यू कैन एबल टू कम्युनिकेट दीज टू कंटेनर्स इजीली विदाउट एनी इशू। तो क्रिएट करना आसान है, डिस्ट्रॉय करना आसान है। तो ये मेजरली इसके जो हाइप क्रिएट होने की जो रीजन है वो यही है कि कंटेनर्स जो है वो लाइट वेट होते हैं। अब एक आखिरी चीज इसमें ऐड करूंगा मैं, ज्यादा क्योंकि डॉकर का कोर्स नहीं है, ये डॉकर का वेबिनार नहीं है, ये वेबिनार है डेवऑप्स का। तो यहाँ पर एक चीज आखिरी में बताता हूँ, इफ यू इन एनी केस इफ यू नीड और एनी डिपेंडेंसी कि आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो डॉकर के पास ऐसे ऐसे लाइट वेट डॉकर के, यानी डॉकर के तो नहीं कहूंगा, कि ऐसे लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख रहे हैं साइजेस, मैंने आपको बताया था कि 3 से 7 जीबी तक आपको आम जो है वो मिलेगा, 1 जीबी का भी मिल जाएगा, बट उसमें चीजें कम होंगी। यहाँ पर आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होता है जिसको हम कहते हैं अल्पाइन। अल्पाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का, अगर आपने गूगल पे करें आपको मिल जाएगा। ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो साइज, कैन यू इवन इमेजिन कि ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज है 55 MB। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन केस आपकी किसी एप्लीकेशन की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जहां पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है, देन यू कैन यूज द लाइटेस्ट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम अल्पाइन कहते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसको आप फौरन पुल करेंगे यहाँ पर, उसको चला के उसके ऊपर अगर आपकी कोई डिपेंडेंसी आप वो सारी इंस्टॉल करते हैं, तो आपको यहाँ पर ये भी मिल जाता है। तो बहुत सारी चीजें, डॉकर इज अ बिग थिंग, मैं उसको एक छोटे से 10-15 मिनट में एक्सप्लेन बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर फिर वर्चुअलाइजेशन, इसके अंदर सॉरी क्या नाम है, वॉल्यूम्स आते हैं, इसके अंदर बाइंड माउंट्स आते हैं, इसके अंदर नेटवर्क्स आते हैं, आपको कम्युनिकेट कैसे करना है, आपको एप्लीकेशंस कैसे डिप्लॉय करनी है, इनकी स्केलिंग कैसे करनी है, फिर एक नोड की बात करो मल्टी नोड्स में कैसे जाना है। तो ये सब चीजें ऑब्वियसली डॉकर के अंदर आती है, जैसे डॉकर स्वार्म है, डॉकर की और भी चीजें आ जाती हैं। तो ये सब चीजें हैं। जी आतिफ का कोई क्वेश्चन है? किसी ने अनम्यूट किया था तो मैंने कहा चलो पूछ लो। If anyone have any small question, then you can ask. Otherwise, we should move to the other tool. ये समझ आई है? कुछ थम्स अप करें ताकि मुझे पता चले आप लोग इधर ही हैं। जी 2-4 तो आ गए रिप्लाई, बाकी भी रिप्लाई करते हैं। ऑब्वियसली आई नो दैट कि दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक और थोड़ा टफ भी है, तो जी क्वेश्चन कर सकते हैं आप मुनसर। अदरवाइज आप मैसेज जो है मुझे चैट पे भेजते, मैं उसको क्या नाम है बोल के उसका आंसर दे दूंगा। ओके ठीक है, सबके तकरीबन मुझे कंफर्मेशन आ चुकी हैं, लेकिन ऑब्वियसली जरा थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहे ना, तो उसमें ज्यादा मजा आता है। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दे दिया करें। अच्छा साथ हाँ भाई, आपको इसमें सिर्फ मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगर हम्म, सपोज कई एप्लीकेशन चल ही विंडोज बेस्ड रही है, हम्म, तो हम लाइनिक्स पे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या विंडोज पे रहते हुए ही ये चीजें हम उसको मैनेज करेंगे? विंडो पे जो विंडो बेस है उनको विंडो पे रखें, उनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यानी कि आप ये अगर आपको ऑब्वियसली आइडिया होगा कि आप डॉटनेट की एप्लीकेशन है वो विंडो पे भी कर सकते हैं, वो लिनक्स पे भी कर सकते हैं। तो बात ये कि लेकिन ज्यादातर कंपनी जो है उसको विंडो पे फॉलो करती है। तो बात ये कि कन्वर्ट भी कर सकते हैं और विंडो को भी यूज कर सकते हैं, विंडो भी यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा अगले कुछ 2-3 टूल्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं, आपसे उसे क्वेश्चन आंसर्स लेता हूँ, वो हमने करने हैं। अच्छा जेंकिंस को डिस्कस कर लेते हैं शॉर्टली, एंसिबल, क्यूबरनेटिस, और एक आखिरी टूल होगा जिसका नाम है टेराफॉर्म, वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे पता टाइम ऊपर जा रहा है। मैंने टाइम शायद 1 घंटे का कमिट किया था। सेशन हमारा तकरीबन कोई 4:15 में स्टार्ट हुआ था, बट नाउ वी आर वेरी क्लोज। बट आई थिंक कि मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ रहें और इस चीज को कवर करें। अच्छा जेंकिंस, मैं कुछ आके इसकी स्क्रीनशॉट पे दिखाऊंगा। जेंकिंस क्या चीज है? जेंकिंस असल में फ्री ओपन सोर्स टूल है, जो कि CI/CD के लिए, यानी CI के लिए यूज होता है। CD के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन असल जो पर्पस है वो उसका CI है,
कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन टूल कहते हैं इसको। कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन का मतलब है कि ये जेंकिंस इतना इजी है, आप अपने छोटे से सर्वर के ऊपर, मैं बल्कि ये कह सकता हूँ कि मैंने भी आप लोगों को एक कंटेनर दिखाया ना, आप क्या करेंगे, सिंपल जाएंगे इस ऊपर जो क्लाउड मैंने बनाया इसको कहते हैं डॉकर हब। आप डॉकर हब पे जाएंगे, जाके वहां से जेंकिंस का इमेज उठाएंगे और उस इमेज के ऊपर कंटेनर चला देंगे, और कंटेनर जो है वो CI के तौर पे काम कर रहा होगा जैसे पहले कर रहा था, यानी कि जिस तरह वो जेंकिंस काम करता है। जेंकिंस के थ्रू आप, जो जेंकिंस की पॉपुलैरिटी है वो ज्यादा इसलिए कि ये ओपन सोर्स है। अदरवाइज जेंकिंस के अगेंस्ट जो टूल्स मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताऊंगा, बल्कि मैं पहले डॉकर से अगेंस्ट टूल बता देता हूँ कि डॉकर के अगेंस्ट भी टूल होते हैं। लाइक अच्छा, लिनक्स का मैं बता चुका, इसका अगेंस्ट तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मैक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम गिट है। तो गिट जो है वो ज्यादातर खुद ओपन सोर्स है, इसके जो क्लाउड रिपोजिटरीज है वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। डॉकर है, डॉकर के अगेंस्ट जो है कंटेनर, और भी कंपनीज जो है वो कंटेनर्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे एक रॉकेट है वो प्रोवाइड करती है, जो कि इसके अगेंस्ट कई कंपनीज, बहुत लिमिटेड कंपनीज यूज करती है। अब जेंकिंस की बात है, जेंकिंस के अगेंस्ट टूल्स जो यूज होते हैं वो सर्कल CI का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ट्रेविस का नाम सुना होगा, गिट लैब CI का नाम सुना होगा, बिटबकेट CI भी होती है, गिट हब की भी होती है एक CI, उसका नाम मैं थोड़ा सा मिक्स कर गया हूँ। तो ये काफी सारे टूल्स हैं जो कि CI के लिए यूज हो रहे हैं। तो जेंकिंस ज्यादा पॉपुलर होने की रीजन ये कि ओपन सोर्स है, और इसमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी जो इंक्रीज करती है वो है कि इसके अंदर प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाते हैं। लोगों ने ना अपने कोड करके प्लगइन्स बनाए हुए हैं, आप उस प्लगइन को वहां पर सर्च करेंगे, वो प्लगइन आपकी ऑटोमेशन के लिए बहुत ज्यादा यूज होते हैं। प्लगइन्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा अकाउंट मैनेजमेंट, लोगों की एक्सेस मैनेजमेंट, पाइपलाइंस क्रिएशन, सिंपल वर्क जो पाइपलाइंस है वो क्रिएट करना, सिंपल आइटम्स क्रिएट करना बहुत ज्यादा इजी है इसके अंदर। इसकी इंटीग्रेशन हर टूल के साथ, लिनक्स के साथ, विंडोज सर्वर्स के साथ, लिनक्स सर्वर्स के साथ, डॉकर के साथ, एंसिबल के साथ, क्यूबरनेटिस के साथ, हर चीज के साथ हो जाती है। और मैंने तकरीबन हर टूल के साथ इसकी इंटीग्रेशन किया है, वेरी इजी इंटीग्रेशन। हम अपने कोर्स के अंदर जो चीजें पढ़ेंगे जेंकिंस के लिए, मैं आपको जेंकिंस पूरा सेटअप भी करवाऊंगा, हम कंटेनर बेस्ड जेंकिंस भी सेटअप करेंगे, हम लोकल यानी कि सर्वर पे भी सेटअप करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे, अकाउंट मैनेजमेंट भी करेंगे, पाइपलाइंस क्रिएशन भी करेंगे, सिंपल डिप्लॉयमेंट्स भी करेंगे। और ग्रूवी इसकी एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज से डरना नहीं है, ग्रूवी मुझे भी सही से नहीं आते लेकिन काम चला लेते हैं। जब आपको काम का पता हो तो आप चला लेते हो, आपको एक्चुअली आप उसको यानी कि यूज करना आपको आता है। उसकी पाइपलाइंस क्रिएशन जो कि आजकल ज्यादा यूज हो रही है वो भी हम करेंगे। तो ये सारा कुछ मेरे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। एंसिबल क्या चीज है? एंसिबल को कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि दिस इज द टूल जो कि मेरे ख्याल से अगर आप में से कोई IT प्रोफेशनल है या कोई कह सकते हैं कि जो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर है उसको तो अगर इस टूल का नहीं पता, और अगर जब मैं उसको इंशाल्लाह बताऊंगा तो वो बहुत खुश होगा, क्योंकि ऑटोमेशन के लिए ये टूल बहुत यूज होता है, स्पेशली किसी भी चीज की ऑटोमेशन, लेकिन सर्वर्स बेस्ड ऑटोमेशन का बहुत ज्यादा ये यूज होता है। मतलब क्या है, अगर आपके पास सपोज दैट के ये 3-4 सर्वर्स हैं, 3 नहीं मिलके कहता, सपोज दैट के ये आपके पास ना कोई 8-10 सर्वर्स हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी भी अदील का नाम ले लेता हूँ कि अदील आपके पास ये एक सर्वर है जहां पर आप बैठे हुए हो, इस सर्वर पे बैठ के ना आपने इन 1, 2, 3, 4 जितने भी सर्वर्स है ना, इन सर्वर्स के ऊपर आपने क्या नाम है MySQL इंस्टॉल करनी है। आप क्या करोगे, पहले एक सर्वर को SSH करोगे, लिनक्स में SSH करते हैं ना, सो कनेक्ट करते हैं, SSH करोगे, इसमें जाओगे, सारे पैकेजेस इंस्टॉल करके MySQL इंस्टॉल करोगे, फिर दूसरे में जाओगे, दूसरे में इंस्टॉल करोगे, तीसरे, चौथे, पांचवें जाते जाते अगर बहुत सारे सर्वर हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन हैं, डिफरेंट पैकेजेस हैं, तो शायद आपको 2-4 दिन भी लग जाए ये सारे काम करते करते। एंसिबल एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप एंसिबल की प्ले बुक्स लिखते हो। उस प्ले बुक्स के अंदर आप लिख देते हो कि भाई ये चीजें इंस्टॉल करनी है, एक लिस्ट ये बनाते हो और एक लिस्ट बनाते हो सर्वर्स की कि भाई 1 नंबर सर्वर, 2 नंबर, 3, 4, 5 ये सारे सर्वर्स की लिस्ट है। आप इस प्ले बुक को यहीं से बैठ के इन सर्वर्स पे पुश करोगे और आपकी सारी डिप्लॉयमेंट्स एक सर्वर पे बैठ के सारी डिप्लॉयमेंट्स विद इन अ फ्यू मिनट्स आपकी डिप्लॉयमेंट्स हो जाएंगी। एंसिबल के अंदर प्ले बुक्स लिखी जाती हैं। हम लोग के मेरा जो कोर्स है उसके अंदर मैं आपको एंसिबल के 4 सर्वर्स के थ्रू एग्जांपल दिखाऊंगा कि 1-2 हम वेब सर्वर्स बनाएंगे, एक लोड बैलेंसर बनाएंगे, एक डेटाबेस का सर्वर बनाएंगे, एक कंट्रोल मशीन से बैठ के प्ले बुक्स को के थ्रू इंस्टॉलेशंस करेंगे,
मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर, और उन मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर विद इन अ सेकंड आप देखेंगे कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो रही होंगी, डिप्लॉय हो रही होंगी। इसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। तो सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स एंसिबल के अलावा भी कुछ टूल्स हैं। जी सरताज, आप क्वेश्चन कर सकते हो। सर मैं पूछना ये चाह रहा था, एंसिबल पे मैंने काम किया, आप जरा दोबारा रिपीट करेंगे? आप लोड बैलेंसर का बता रहे थे एंसिबल के थ्रू। हाँ, मैं बात ये कर रहा था कि अगर आपको सपोज दैट कि आपके पास एक सर्वर है, आपने लोड बैलेंसर या एनजीएनएक्स बेस सर्वर बनाया हुआ है, आपने 2-3 सर्वर वेब के अपाची के बेस बनाए हुए सर्वर्स, आपके 2-4 अगर जो है डेटाबेसेस हैं, और आपको ये सारा कुछ एंसिबल की प्लेबुक के थ्रू मैनेज करना है, तो आप एंसिबल की प्लेबुक लिखेंगे और लोड बैलेंसर की कॉन्फ़िगरेशन लोड बैलेंसर में चली जाएंगी, जो वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन वेब सर्वर में चली जाएंगी, डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस में चली जाएंगी। तो आप अपनी उसके अकॉर्डिंगली प्लेबुक्स को एग्जीक्यूट करोगे यूजिंग योर कंट्रोल मशीन। तो बात ये कि अगर आपको डिफरेंट सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशंस भी एक सर्वर से बैठ के करनी पड़ती है, सो यू कैन इजीली डू दैट, और ये सारे कुछ आप प्लेबुक्स के अंदर लिखोगे। और प्लेबुक्स के अंदर एंसिबल के अंदर प्लेबुक्स भी होती हैं, रोल्स भी होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो दिस इज द थिंग मैं जो बता रहा था। एंसिबल के अलावा भी कुछ टूल्स हैं जो कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स हैं जो कंपनीज में यूज हो रहे हैं, जिनमें पपेट का नाम सुना होगा, शेफ का नाम सुना होगा। दीज आर द बोथ आर द टूल्स जो कि कंपनी में डिफरेंट जगहों पे यूज हो रहे हैं। बट एज पर माय अंडरस्टैंडिंग कंपनीज में कंपैरेटिवली ज्यादा एंसिबल यूज हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट पर्पसेस के लिए। दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस थिंग इन माय कोर्स। तो एंसिबल हम लोग इस कोर्स में पूरा पढ़ेंगे भी, इंशाल्लाह इसको डेप्थ में डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं आखिरी सेकंड लास्ट है, वो है क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस की अंडरस्टैंडिंग आपने इस तरह से लेनी है कि इसको कहते हैं ऑर्केस्ट्रेशन, कंटेनर्स ऑर्केस्ट्रेशन टूल भी कहते हैं। कि आपने कंटेनर्स बना तो लिए, ये जो डॉकर में हम लोगों ने भी, मैं आपको डॉकर की सारी डिटेल्स बताई थी कि आपने डॉकर्स के थ्रू आपने कंटेनर्स बना लिए, एक नोड पे बनाए। अगर आपने एक होस्ट मशीन पे बनाए, अगर आपको मल्टीपल होस्ट मशीन पे बनाने हैं और उनको मैनेज करना है, उनको ऑर्केस्ट्रेट करना है, तो उसके लिए क्यूबरनेटिस यूज होता है। दुनिया में इस टाइम डेवऑप्स के अंदर, मैं आपको कंफर्म कह रहा हूँ, आप लोग जंप इन करो, लर्न करो। क्यूबरनेटिस के जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है, उनकी डिमांड इस टाइम आंखें बंद करके कंपनीज उठा रही है। द हॉटेस्ट टूल जो कि डेवऑप्स का है वो क्यूबरनेटिस है, और इससे अगला टूल जो मैं कहूंगा। लेकिन क्यूबरनेटिस की जो अगर किसी ने सीखना है, तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डॉकर और कंटेनराइजेशन आप क्यूबरनेटिस को नहीं सीख सकते सही से कैसे, क्योंकि आपके 70% कॉन्सेप्ट, बल्कि 80% कॉन्सेप्ट जो है ना डॉकर क्यूबरनेटिस के डॉकर से ही क्लियर हो जाते हैं। कंटेनर्स भी वहां पर यूज होते हैं, वहां पर कंटेनर्स नहीं होते ऑब्वियसली, वहां पॉड्स होते हैं, लेकिन वो भी इसी तरह काम करते हैं। इमेजेस वहां पर भी यूज होते हैं, वॉल्यूम्स वहां पर भी यूज होते हैं, बाइंड माउंट्स वहां पर भी यूज होते हैं, नेटवर्क्स वहां पर भी यूज होता है, वहां पर और भी चीजें यूज होती है। लेकिन द मेजर prereq for this Kubernetes course is the Docker. Docker की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, यू कैन इजीली Kubernetes से मैनेज कर सकते हैं। Kubernetes ज्यादातर मल्टीपल नोड्स को मैनेज करने के लिए, उनके ऊपर कंटेनर्स को पॉड्स को रन करने के लिए, पर पॉड्स और कंटेनर एक ही, इसलिए मैं भी कंटेनर का वर्ड यूज कर लेता हूँ। तो वो होती है कंटेनर्स की मैनेजमेंट के लिए या ऑर्केस्ट्रेशन के लिए हम जो है वो टूल यूज करते हैं, Kubernetes कहते हैं। Kubernetes गूगल का प्रोप्राइटरी टूल है, गूगल का टूल है। ये है तो ये ओपन सोर्स, लेकिन गूगल ने इसको डेवलप किया, तो इसीलिए गूगल का टूल है, इसीलिए काफी ज्यादा ये हॉट भी है इस टाइम, और कंपनी सबसे ज्यादा यूज कर रही है। अच्छा, एक चीज की इसके ऊपर एप्लीकेशंस कौन सी डिप्लॉय होती है, ज्यादातर जो है माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशंस डिप्लॉय की जाती हैं ऑन अ क्यूबरनेटिस। और माइक्रो सर्विसेज क्या होता है, अगर वो भी एक्सप्लेन कर दूं, तो माइक्रो सर्विसेज का मतलब ये कि आजकल कंपनीज क्या कर रही हैं, वो रेगुलर जो डिप्लॉयमेंट के मेथड्स है ना, जो कह सकते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट के मेथड्स है, उनको छोड़ के कंपनीज माइक्रो सर्विसेज पे जा रही हैं। यानी कि वो क्या कहती हैं कि यार, अगर एक एप्लीकेशन डिफरेंट टीम्स ने बना ली, हमारी एक टीम डिपार्टमेंट ने बना ली, फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ बना लिया, और अगर उसके किसी भी पार्ट में इशू आता तो पूरी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश कर जाती थी। कंपनी क्या कर रही है, अब उस एप्लीकेशन के लॉगिन फीचर अलग को डेवलप कर रहा है, और उसको डिप्लॉय किसी और कंटेनर पे किया, यानी पॉड के ऊपर किया जा रहा है। उसका सर्च वाला फीचर कोई और डेवलप कर रही है टीम, उसको किसी और यानी कि पॉड के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हैं। यानी एक ही एप्लीकेशन को ब्रेक डाउन कर दिया, उसी कोई एप्लीकेशन का जो पार्ट है उसको किसी और, यानी कि माइक्रो सर्विसेज के अंदर उसको जो है तोड़ दिया। उसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपके डिप्लॉयमेंट के दौरान या किसी सर्वर के क्रैश होने के दौरान या पॉड के क्रैश होने के दौरान अगर लॉगिन का पॉड क्रैश हो गया, तो पूरी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी, एप्लीकेशन वैसी चल रही होगी, सिर्फ आपका लॉगिन फीचर काम नहीं कर रहा होगा। आप उसके साथ फिक्स करवाएंगे, टीम के साथ बैठेंगे, उसको वापस लेके जाएंगे, पॉड को लाइव करेंगे, आपका लॉगिन फीचर चल पड़ेगा।
बाकी बाकी एप्लीकेशन इम्पैक्ट नहीं होगी। पूरी एप्लीकेशन को बचाने से बेटर, यानी कि इफेक्ट करने से बेटर है कि आप उसको डिफरेंट छोटी एप्लीकेशंस के अंदर जो है वो तोड़ देते हैं। तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं फॉर द माइक्रो सर्विसेज। अच्छा, एक टूल रह गया, ये तो वैसे मैंने लिख दिया था कि इनके जो लोगोज हैं वो ये हैं, लिनक्स का, गिट का, डॉकर का आपने देखा होगा, जेंकिंस का, एंसिबल का, कुबरनेटिस का, और आखिरी टूल जो कि इस टाइम दुनिया में सेकंड या कई जगहों पे फर्स्ट हॉटेस्ट टूल है, वो है टेराफॉर्म, जो कि इस कोर्स में इंक्लूडेड है। और ये टूल क्यों यूज होता है, इसका जो पर्पस है वो मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेराफॉर्म ज्यादातर जो यूज होता है, इसको जो कहते हैं वो इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल। ये नीचे मैंने लिखा भी हुआ है IaaC। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का मतलब ये होता है कि क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस आपने डिप्लॉय तो कर ली, आपने उसके ऊपर सर्वर भी बना लिए, आपने डेटाबेसेस भी बना लिए, आपने स्टोरेजेस भी बना लिया, आपने पाइपलाइंस भी बना ली, सब कुछ कर लिया। लेकिन अगर आपको यही एप्लीकेशन बार बार बनानी है, बार बार इनकी कोई रेप्लिकास क्रिएट करने हैं, कॉपीज क्रिएट करने हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने हैं, एक जगह पे एक रीजन में बनाया हुआ आपको डिफरेंट रीजन में बनानी है, तो आप क्या दोबारा बनाएंगे? तो इसीलिए कंपनीज आपके कह रही है अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने डिप्लॉय किया हुआ है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पर कोडिंग आती है। टेराफॉर्म जो है वो हाशिकॉर्प कॉन्फ़िगरेशन जो लैंग्वेज है उसको सपोर्ट करता है, इसी की टेराफॉर्म किया है। टेराफॉर्म जो है हाशिकॉर्प का टूल है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इनकी जो लैंग्वेज है वो उसको कहते हैं HCL। और एक और बात दोबारा मैं ये कहूंगा, मैं आप लोगों को इसलिए ये बार बार एग्जांपल देता हूँ, इससे ये मैं अपने आप को एक प्रोमिनेंट नहीं करना, असल पर्पस है आप लोगों को मोटिवेट करना कि भाइयों मैं भी आप लोग जैसा ही हूँ। मैंने भी ये टूल इनके ऊपर बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस पे काम नहीं किया हुआ था, मेरा डेवलपमेंट और डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हाशिकॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज के नाम से नहीं डरना, मैंने भी कुछ अर्से में सीख ली। काम करते हो आपके ऊपर, जब रेगुलरली काम करते हो आपको आ जाती है। डॉकर के अंदर अच्छा लैंग्वेजेस की बात जहां तक आती है, मैं शॉर्टली थोड़ा सा डराऊंगा नहीं, सिर्फ बताऊंगा। लिनक्स के अंदर आपको पता है बैश यूज होती है, गिट के लिए भी बैश ही यूज होती है। डॉकर के लिए जो लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए या आनी चाहिए वो YAML है, YAML, वो आपको आनी चाहिए। जेंकिंस के लिए जो लैंग्वेज है वो ग्रूवी है। और भाइयों अगेन डरना नहीं है क्योंकि ओबियसली मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब IT प्रोफेशनल पीछे कुछ अर्से पहले काम करता रहा हूँ, तो जब मुझे इस तरह से कोई बताता था कि यार लैंग्वेजेस इतनी ज्यादा, तो यार मैं तो नहीं कर सकता, ये मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन लैंग्वेजेस इस तरह से नहीं है कि आपको, जिस तरह डेवलपर्स हर टाइम कोडिंग कर रहे होते हैं, आपको एक स्क्रिप्ट लिखना है, एक काम करना है, आप उससे गूगल की, अब तो गूगल है यार, ओपन सोर्स कम्युनिटीज पड़ी हुई है जिनके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, जेंकिंस में ग्रूवी यूज होती है, एंसिबल के अंदर YAML यूज होती है, कुबरनेटिस में भी YAML यूज होती है, और इसके अंदर HCL यूज होती है, हाशिकॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। लेकिन सब कुछ आ जाता है, बस मोटिवेटेड रहना है और कूदना है। टेराफॉर्म, अच्छा आखिरी चीज, टेराफॉर्म का जो सबसे ज्यादा मजा है या सबसे ज्यादा इसकी पॉपुलैरिटी दुनिया में इसलिए ज्यादा है कि ये सेम टूल, सेम लैंग्वेज, सेम वे ऑफ डूइंग एनीथिंग, आप AWS पे भी काम कर सकते हो, आप गूगल क्लाउड पे भी कर सकते हो, आप Azure पे भी कर सकते हो, आप अलीबाबा क्लाउड पे भी कर सकते हो, आप किसी भी क्लाउड के ऊपर काम कर सकते हो। सेम कोड, सेम वे, सेम क्या नाम है, द वे ऑफ डूइंग एनीथिंग। आप जिस तरह से AWS के लिए रिसोर्सेज क्रिएट करो, उसी तरह की बात कर रहा हूँ, प्रोवाइडर डिफरेंट हो जाता है, तो उसी तरह से आप Azure के लिए भी काम कर सकते हो, उसी तरह आप GCP के लिए भी काम कर सकते हो। क्लाउड इसमें कोई, हालांकि हर क्लाउड का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल भी है। AWS का जो टूल है जिसका नाम है AWS क्लाउड फॉर्मेशन, वो AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल है। तो ये चीज है जो कि मैंने शॉर्टली एक्सप्लेन की। मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ आऊंगा जल्दी से, लेकिन पहले आखिरी प्रोजेक्ट्स, मेरे जो कोर्स है उसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन मैंने कुछ प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर रखे भी हुए हैं जो कि मेरे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। लिनक्स जेंकिंस MySQL AWS बेस मैंने एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है। इसमें AWS का नॉलेज इतना ज्यादा नहीं इंक्लूड होगा, अगर आपको पता है तो अच्छी चीज है, नहीं पता तो वो कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं डालेगा आपके कोर्स में। सेटअप हम करेंगे, प्रोडक्शन स्टेजिंग एनवायरनमेंट CI/CD प्रॉपर बनाएंगे, जिसमें ग्रूवी के थ्रू पाइपलाइंस बनाएंगे प्रॉपर तरीके से, डिफरेंट एनवायरनमेंट डिफरेंट हम लोग उसको यूज भी करेंगे। डिप्लॉय, अच्छा इसमें पूरी जावा की एक एप्लीकेशन आपको डिप्लॉय करके CI/CD के थ्रू पूरी जो है उसके बिल्ड टेस्ट सारे जो है वो हम लोग करेंगे, वो सब कुछ होगा इसके अंदर। हम लोग वेब एप्लीकेशन डॉकर के थ्रू बहुत सारी वेब एप्लीकेशंस करेंगे। डॉकर के थ्रू हम लोग क्या नाम है डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के ऊपर भी काम करेंगे, डिप्लॉय करेंगे पूरी एक एनवायरनमेंट एंसिबल के थ्रू, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था हम करेंगे। कुबरनेटिस के थ्रू हम लोग जो है वो एक दो एप्लीकेशंस, पहले तो हम इसकी बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद फिर प्रोजेक्ट्स में हम एप्लीकेशंस डिप्लॉय करके आपको मैं डमी एप्लीकेशंस दिखाऊंगा।
फिर क्यूबरनेटिस टेराफॉर्म के थ्रू हम पूरा आर्किटेक्चर जिसमें ऑब्वियसली इसका प्री रैक AWS है कि आपको AWS की नॉलेज, लेकिन अगर आपको मैं बता दूं कि भाई सर्वर कैसे क्रिएट होता है, आपको ये दो चीजें क्रिएट होती हैं, तो ऑब्वियसली आपको समझ आ जाएगी, यहाँ तक आप पहुंचते चीजों को सीख जाओगे। तो वो भी हमारा इसके अंदर ये नहीं है कि सिर्फ ये है, छोटे छोटे और भी चीजें इंक्लूडेड हैं, लेकिन मेजर प्रोजेक्ट्स ये हैं जो कि इंक्लूडेड है। अब मैं आखिरी 2-3 स्लाइड्स हैं जिसमें मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ। असल में कई लोगों ने देखा नहीं होता, ये शर्मिंदगी वाली बात नहीं है कि अगर आपने नहीं भी देखा, ऑब्वियसली अगर आपकी जॉब ही नहीं है तो लिनक्स का टर्मिनल या CLI इस तरह से होती है जिसमें हम डिफरेंट काम कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। गिट की ये है, गिट के अंदर हम जब काम करते हैं, गिट कमिट या गिट पुश या कुछ भी करते हैं, गिट स्टेटस, और अगर मैं गिटहब की बात करूं तो उसका स्क्रीनशॉट ये मैंने लगा दिया है जस्ट आप लोगों को। डॉकर का इस तरह से होता है कि डॉकर के कंटेनर्स, अगर आपने इमेजेस देखने हैं तो ये इमेजेस दिखा रहा है, ये AWS डॉकर के कंटेनर्स दिखा रहा है, ये डॉकर की एप्लीकेशन जो डिप्लॉय हुई है लोकल होस्ट पे वो दिखाई है। हम लोकल होस्ट यूज कर लेंगे या हम लोग कोई भी ऑनलाइन यूज कर लेंगे चीज। जेंकिंस का UI ये है, इसकी UI इस तरह से होती है जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं, आप कोई बिल्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। ये एंसिबल की प्लेबुक्स इस तरह से लिखी जाती है, YAML के अंदर लिखी हुई है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, और उसको जब रन करते हैं तो उसके रिजल्ट्स इस तरह से आते हैं। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट्स लगा दिए, मुझे टाइम का था कि शायद टाइम मैनेज ना हो, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट्स लगा दी। ठीक है, क्यूबरनेटिस की जो डेफिनेशन फाइल्स या मैनिफेस्ट फाइल्स होती हैं वो क्या नाम है, हम इस तरह से लिखते हैं और इस तरह से उसका रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर नजर आते हैं। तो ये आता है। अच्छा, ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं जो कोर्स कंप्लीशन के ऊपर होते हैं, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को देता भी हूँ। और आखिर जल्दी से क्विकली कि मैं क्या प्रोवाइड करूंगा अपने पूरे कोर्स के अंदर, जो डेवऑप्स का कोर्स इंशाल्लाह 9th अगले वीक से स्टार्ट हो रहा है, कि हम पूरे ये 7 नहीं 8 टूल्स हैं, हम उनको कवर करेंगे। लाइव सेशंस होंगे जूम के ऊपर, वो इंशाल्लाह स्टार्ट होंगे। आपके पास इसके ऊपर LMS की पूरी लाइफ टाइम हमेशा एक्सेस भी रहेगी जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे। हमारे मैक्सिमम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस लैब्स ही हैं, इसमें थ्योरी बहुत कम है। थ्योरी सिर्फ इतनी है कि आपको एक्सप्लेन करूंगा कि भाई टूल है क्या, होता क्या है, इसे करना क्या है। बहुत सारी स्लाइड्स तो जो भी आपके साथ होंगी वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। काफी ज्यादा लंबा सेशंस है क्योंकि तकरीबन 3.5 मंथ्स का कोर्स है, क्योंकि सैटरडे संडे को क्लासेस होंगी, तो आपको काफी ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने सब कुछ बेसिक से पढ़ाना है। तो ये चीजें आ जाती हैं। रिकॉर्डिंग, लैब की रिकॉर्डिंग, सब कुछ आपके पास एक्सेस रहेगी। मल्टीपल क्विजेज हैं इसके अंदर, मल्टीपल असाइनमेंट्स हैं। 24/7 मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप अवेलेबल है, मैं ईमेल पे अवेलेबल हूँ, व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। एक कम्युनिटी ग्रुप है जिसका भी लिंक ऊपर तैयब ने शेयर भी किया है आप सबके साथ, वो उज़ैर ने शेयर किया है, तो वो भी आप लोगों ने क्या नाम है, तो वहां से भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास फ्री मेरे पास मटेरियल है, मैं काफी ज्यादा यूट्यूब पे वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ आजकल, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब का चैनल है एल्बिसटेक, उससे। और बाकी ये कि मैं हमेशा फर्स्ट पोजीशन जो कि होता है उसको अनाउंस भी करता हूँ, उसको मैं गिफ्ट भी देता हूँ और उसको शील्ड भी मिलती है, तो वो भी इसके अंदर होता है, जस्ट टू मोटिवेट यू। और अगर रजिस्ट्रेशन करनी तो वो कोर्स की है। अब असल चीज के ऊपर आते हैं, जो चीज है वो है असल क्वेश्चन। जितने मर्जी क्वेश्चन करो कोई मसला नहीं है, लेकिन बस अपने चीजें क्लियर करो। आप लोग के जो माइंड में चीजें हैं, जो कंफ्यूजन है, उसको क्लियर करो। 1 बाय 1 क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। जी जी सर, ताश आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, एनसिबल के थ्रू एक तो है ना, लेट्स सपोज हमने मोंगोडीबी इंस्टॉल करना है 100 सर्वर्स पे। अगर हम चाहते हैं 20 पे कुछ और इंस्टॉल हो, 20 पे कुछ और हो, और हमने होस्ट फाइल के अंदर सारे उनके दिए हुए हैं, ऐसे भी हो जाता है? हाँ हाँ बिल्कुल हो जाता है। आप होस्ट फाइल के अंदर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दो ना, कि आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर देते हैं कि भाई मेरे 10-20 के लिए ये वाला होगा, तो आप उसका डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट, आपने कहा सारा कुछ एक में नहीं करना तो आप ऑल में ना डालो, आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर देते हैं। और उसके अंदर फिर ये होगा कि जब आप उसको होस्ट प्लेबुक को एग्जीक्यूट करोगे उस होस्ट के स्पेसिफिक, तो फिर वो डिफरेंट वर्जन उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो जाते जाएंगे। अच्छा, ये एनसिबल रूल्स जी बिल्कुल बिल्कुल, उससे आप क्रिएट करते हो। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आप उसमें पूल क्रिएट कर दो ना कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक, डेवऑप्स से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, मैं बल्कि जो बिल्कुल न्यू है, फ्रेश ही है, उसको जरूर मोटिवेट करूंगा, यार क्वेश्चन करो, कंफ्यूजन दूर करो। आप लोग पूछो कि क्या होना चाहिए, क्या चीजें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, अपनी लर्निंग के लिए भी, कोर्स से अलावा भी, तो आप लोग कर सकते हो। जी अदील। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसा आपको पता होगा कि यहाँ पे हमारे मल्टीपल बैकग्राउंड से लोग होंगे जो कोर्स करना चाह रहे होंगे, तो अ, थोड़ा अजीब सा सवाल है, लेकिन अगर इसको करके मतलब मार्केट में बिल्कुल फ्रेश ही बंदा आ रहा है, तो वेलकमिंग मार्केट है इसकी, मतलब हाँ। चूंकि आप हैं ऑलरेडी इस मार्केट में,
तो बहुत एक अच्छा बंदा अगर कोई डेवऑप्स का कोर्स करता है और मतलब चले एक एवरेज नॉलेज या एवरेज उस पे आके, तो और उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस 5 से 6 साल का आईटी का या वॉइप का या इस तरह से रिलेटेड है, तो उन लोगों के लिए ये है मतलब एज अ अपॉर्चुनिटी उसको कंसिडर किया जा सकता है। अदिल, आपके लिए मेरा मेरा जो आंसर है वो ज्यादा, मेरे लिए आंसर आसान है, क्योंकि आपकी और मेरी स्टोरी एक ही है। जी, क्योंकि और मैं मैं, खुद वॉइप से और आईटी से हाँ, निकलने मैं चाह रहा था, इसलिए मैं मैं आज यहाँ पे हूँ। बिल्कुल, मैं खुद 5 साल मैंने वॉइस ओवर आईपी में काम किया हुआ है, और मैंने आईबेक्स के अंदर काम किया हुआ है, टीआरजी के अंदर, और अभी भी मेरे अच्छे सही रिलेशन है है वहाँ पर। तो मैं इसलिए कहता हूँ वो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है पाकिस्तान की, उससे ऊपर फिर मैं क्या जाता। तो जी, और मैं मल्टीनेट में था हाँ, तो वॉइप। अब सही मैं है। आपको बताता हूँ कि मैं इनके ये मैंने सिर्फ इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको बताता हूँ कि मैं इनको अपनी बात कहूंगा तो ऑब्वियसली समझ। मैंने हम्म। मैंने वहीं पर बैठते हुए रहते हुए एडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेशन की, एडब्ल्यूएस की लर्निंग की, डॉकर, एंसिबल, सब कुछ वहां पर बैठ के सीखा। और मैं बता रहा हूँ मैंने बहुत डिस्ट्रैक्टेड लर्निंग की थी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, लेकिन एक चीज को या किसी एक कोर्स को फॉलो करोगे ना जिसमें सब कुछ आपके पास इंक्लूडेड होगा, तो आपके लिए डिस्ट्रैक्ट नहीं हो गया। आपको ये नहीं पता होगा कि भाई मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा, मैं गलत तो नहीं जा रहा, एग्जैक्टली। तो आप उसको फ्लो को एक फॉलो कर लेते हो। मैंने डिफरेंट जगहों से पढ़ा, ऑनेस्टली मैंने यूट्यूब पे भी डिफरेंट पढ़ा, थोड़ा थोड़ा कंटेनर कहीं सीखा, और ऑब्वियसली आपके जहन में ये भी आ रहा था यार पाइथन भी सीख लो, आगे से मैं कि आप जो है कोई और लैंग्वेज भी सीख लो, लेकिन और होता भी था मेरे साथ। अच्छा, दूसरी चीज ये कि मैंने वहां पर बैठ के ये चीजें सीखी, उसके बाद मैंने इंटरव्यूज देने शुरू किए। हालांकि मैंने लिटरली ये जो मैंने प्रोजेक्ट्स इसमें इंक्लूड किए, मैंने ये प्रोजेक्ट्स नहीं किए हुए थे, मैंने सिर्फ छोटे छोटे एडब्ल्यूएस का था कि मेरे बाय चांस मुझे टीआरजी के अंदर रहते हुए, आईपेक्स के अंदर रहते हुए ही जो है वो एक एडब्ल्यूएस के ऊपर प्रोजेक्ट करने का मौका मिल गया। उनकी रिकॉर्डिंग्स थी, वो हमने माइग्रेट करनी थी, वो मैंने की, और वो ऑब्वियसली मैंने अपने इंटरव्यूज को डिफेंड, पहले एक दो इंटरव्यूज ऑब्वियसली फेल नहीं हुए, वहां से निकल नहीं, यानी कि वो क्लियर नहीं हुए। फिर एक दो जगहों पे मैंने फिर एडब्ल्यूएस बेस के, कंपनी की रिक्वायरमेंट एडब्ल्यूएस की ज्यादा थी, मैं एडब्ल्यूएस बेस की हुई, और पाइपलाइंस का भी पता था मुझे, सारा कुछ पता था, वहां गया वहां, लेकिन वहां मैंने सिर्फ मेरा 3-4 महीने लगाए, क्योंकि मैं वहां सेट नहीं था प्रॉपरली। मैंने जैसे मुझे लगा कि यार मैं सेट नहीं हूँ, मैंने दूसरी कंपनीज में अप्लाई करना शुरू कर दिया। बात ये कि गलत नहीं है, मैं अगर मेरी रिकॉर्डेड कॉल है और ये इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी अपलोड होगी, ये सारी जगह पे होगा, मैं बड़ी क्लाइंट्स के साथ बड़ी जगहों पे काम करता हूँ। आप कंपनीज को अपने यूज के लिए यूज नहीं कर रहे होते, आप अपने अपनी अपनी जो एक फील्ड है ना, अपने आगे ग्रो करना है, उसके लिए आपको स्टेप्स चाहिए होते हैं, आप कहीं से एक चीज सीखते हो। मैं तो बल्कि कहता हूँ आपको इंटरव्यू दो, अपना इंटरव्यू डिफेंड करना सीखो। और एक बात कि इस लर्निंग के अंदर मुझसे पढ़ो या कहीं से भी पढ़ो, जो चीजें आप लोग कर रहे हो, जो प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो, उसको थोड़ा सा अपनी सीवी के अंदर डाल दो कि भाई ये मैंने प्रोजेक्ट किया हुआ है, मैंने 6 महीने काम किया और मैंने ये प्रोजेक्ट किया हुआ है। इफ यू डिफेंड योर सेल्फ देन यू कैन डू दैट। आपको अगर उसका क्लैरिटी है कि आपने जो किया है आप उसको डिफेंड कर सकते हो, तो आप जरूर उसको अपनी सीवी के अंदर मेंशन करो, और आप ये कहो कि भाई ये मैंने काम किया है। इट्स नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि आपने सीखा हुआ है। अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी और उसको उस जैसी कोई चीज चाहिए होगी, तो दे विल हायर यू। ऑनेस्टली आपका क्वेश्चन इस सेंस में अच्छा है कि ये वो फील्ड है जिसमें लोग बिगनर्स को इतना अप्रिशिएट नहीं करते, ऑनेस्टली नहीं करते, लेकिन कहीं से स्टार्ट करना है, इसका ये मतलब नहीं कि बैठ जाना है, झटके लग जाएं, चाहे एक दो कंपनी से आपको निकाल दिया जाए, अगर आपने करना है हिम्मत नहीं हारनी, आप इंशाल्लाह जरूर करोगे। लेकिन अगर आप डेडिकेटेडली लर्निंग करते हो, आप फोकस कर लो कि यार मैंने क्लियर कर लो अपना माइंड कि मैंने ये करना है, तो आप ये कर सकते हो। मेरा माइंड, क्योंकि माइंड क्लियर होना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप जो है वो इंशाल्लाह जरूर इस चीज के लिए सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है जी, जैन आपका कोई क्वेश्चन? जी सर, मैं जैन मलिक हूँ, और जैसे आदिल भाई ने अभी क्वेश्चन करा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस मेरा भी यही है, क्योंकि मैं भी आईटी से रिलेटेड हूँ, सिस्टम लिमिटेड के अंदर हूँ। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादातर सपोर्ट के साइड पर है, तो मुझे भी अपनी चीज़ें चेंजेस करनी है और आगे डेवलप होना है। तो मेरा सवाल ये है कि मैं CEH सर्टिफाइड हूँ और काली लिनक्स पे मुझे अच्छा खासा काम आता है, लेकिन मैं प्रोग्रामिंग साइड पर नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि प्रोग्रामिंग साइड से मुझे थोड़ा सा डर लगता था, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा हटा हुआ हूँ। तो मेरा यही सवाल है कि क्या इसके कोई प्री रिक्वेस्ट हैं, और जी, इसको अगर मैं आगे मूव ऑन होता हूँ इसके अंदर, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस हद तक है, क्या वो डिस्टर्ब करेंगी चीजें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं बताता हूँ। या फिर इसको अगर थोड़ा सा फोकस रहूं तो इस चीज को मैं फॉलो कर सकता हूँ और आगे चीजें इसमें स्मूथली जा सकती है इसके अंदर चीजें। हाँ, मैं एक चीज इसमें मेंशन ये करूंगा कि आम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, पाइथन है या जावा है, या जो डेवलपर्स यूज कर रहे होते हैं, मेरे साथ यहाँ पर कई डेवलपर्स भी होंगे, वो इस चीज से एग्री करेंगे।
डेवलपर का काम होता है कि उसने करना ही करना है, उसने प्रोग्रामिंग ही करनी है उसने, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग करके उसने अपनी एप्लीकेशन बनानी है ना, तो उसकी तो हर टाइम उसका सुबह के जो अगर वो 9 AM to 6 PM काम भी कर रहा है तो उसने सुबह 9 AM से लेके अपनी टिकट्स के ऊपर काम करना और डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट करनी है। हम लोग डिप्लॉयमेंट्स के ऊपर काम करते हैं, हमारे अब काम बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग से आसान हो गए हैं, डैशबोर्ड से बहुत सारे हो गए हैं। जो प्रोग्रामिंग वाली साइड है ना वो बहुत लिमिटेड। हमारा काम अगर दिन में हम 9 घंटे काम करें ना तो हमारा जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है शायद 1 या 2 घंटे का होगा। अच्छा, वो प्रोग्रामिंग होती क्या है? मैंने जिस तरह बताया YAML बहुत ही आसान है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द कुछ YAML के ऊपर 1-2 घंटे का ना बेसिक का एक वीडियो लॉन्च कर दूं इसी वीक के अंदर। मेरी एक है ये मेरा लिनक्स का एक ओपन सोर्स, जो ओपन सोर्स कह रहा हूँ, एक ओपन कोर्स पड़ा हुआ है जो कि मेरी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, लेकिन YAML का नहीं है। YAML का मैं कोशिश करूंगा, वो इसलिए कि जो भी यानी कि ज्वाइन करे, जब भी ज्वाइन करे तो वो क्या नाम है कम से कम YAML की अंडरस्टैंडिंग ले ले। YAML बहुत आसान है और YAML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको कैद जरूर देती है, लेकिन असल में वो मार्कअप लैंग्वेज है। मतलब ये देखिए फ्री कोर्स में जाएं, यहाँ पर लिनक्स का एक कोर्स पूरा पड़ा हुआ है। इसी तरह मैं कोशिश करूंगा, ये कुछ 13-14 वीडियोस हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर योर इंटरेस्ट। जो कि आपकी तो ऑब्वियसली लिनक्स अच्छी है, जिनकी नहीं है ऑब्वियसली उनके लिए बहुत इजी है यानी कि। अच्छा, दूसरी बात आती है, हाँ आपने इसमें बताया था कि AWS का थोड़ा सा एनरोल इसमें ज्यादा है। अगर आपको AWS शुरू में चीजें आती हैं तो ये चीजें आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएंगी, लेकिन जबकि हम AWS के बारे में कुछ जानते नहीं है, तो अगर हम इस चीज को स्टार्ट करें तो ऐसा नहीं है कि हमारे कॉन्सेप्ट खराब हो जाए या फिर हम सही से समझ ना पा रहे हो इस चीज को। नहीं, मैंने नहीं कहा कि मैंने ये कहा था कि डेवऑप्स के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग जरूरी है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, क्योंकि मैं डेवऑप्स भी पढ़ाता हूँ, AWS भी पढ़ाता हूँ, लेकिन सेपरेट क्यों पढ़ाता हूँ इसकी रीजन मैं देता हूँ। तो कोर्स कंटेंट उसका भी 3 महीने का, इसका 3.5 महीने का, तो वो बहुत लंबा हो जाता है। दूसरी रीजन ये कि करना दोनों है। अच्छा, बात स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई करना कहाँ से चाहिए, क्या डेवऑप्स पहले करे या AWS पहले करे, या AWS पहले करे या डेवऑप्स करे। तो एक बात याद रखें कि कोई डिपेंडेंसी नहीं है डेवऑप्स की AWS के ऊपर अभी कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंगली। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने ज्यादातर काम जो है वो ओपन सोर्स के ऊपर ही करना है। मैंने पाइपलाइन अगर आपको बनानी है, सिखानी है, तो मैंने आपको ये बताना सिखाना है कि अगर मैं AWS पे कर भी रहूंगा ना, तो मैं आपको कहूंगा कि ये समझे कि आंखें बंद करके कि ये AWS नहीं है, ये समझने के अब मैं अपने लोकल VM पे भी कर सकता हूँ वो काम, लेकिन मैं VM पे इसलिए नहीं करता कि मेरे पास पूरे 3 महीने के कंटेंट को मैं स्टार्ट स्टॉप नहीं कर सकता। वहां पर रिसोर्सेज मैंने परचेज किए हुए हैं, मैं अपने अकाउंट दे रहा हूँ, तो मैं वहां से सर्वर लेता हूँ, उस सर्वर को काली स्क्रीन को चला लेता हूँ, उसके ऊपर मैं डिप्लॉयमेंट कर लेता हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में AWS को मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन AWS वैसे यूज नहीं हो रहा होगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको VPC की जरूरत क्यों, वहां पर VPC की जरूरत क्या है, आपको जो है वो S3 की जरूरत वहां पर है कि नहीं है, वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। मैंने यहाँ पर जो एक चीज लिखी था कि प्रोजेक्ट्स के अंदर कि मैं आपको S3 या क्या नाम है AWS से रिलेटेड होगा, तो AWS से रिलेटेड सिर्फ ये होगा कि वहां पर मैंने एक स्टोरेज क्रिएट की हो, मैं वो स्टोरेज गूगल ड्राइव भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गूगल आपको पहले सिखाऊंगा और वो पढ़ाऊंगा, तो वहां एक स्टोरेज क्रिएट की है, वो स्टोरेज के ऊपर मैं डेटा रखूंगा बस। तो इसीलिए डिपेंडेंसी नहीं है। अगर होती तो ऑनेस्टली मैं उस चीज को क्यों हाइड करता, क्योंकि जब कंटेंट शुरू होना है तो ऑब्वियसली वो चीज डिपेंडेंसी है। फिर मेरा एक प्रो होना चाहिए था, फिर मैं शायद दोनों कोर्सेज को मर्ज भी कर देता, बट देयर इज नो डिपेंडेंसी बिटवीन दोस थिंग्स। ठीक है। अच्छा, YAML मैं आखिरी चीज बताता हूँ लैंग्वेजेस की, कि HCL की बात है, YAML की बात है या ग्रूवी की बात है, हमारा काम बहुत लिमिटेड है। और हमारे पास ऑनेस्टली मुझे 4 साल हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर, और मैं एक्सटेंसिव लेवल के ऊपर पाइपलाइंस के ऊपर और टेराफॉर्म और क्यूबरनेटिस पे काम कर रहा हूँ। मुझे इसलिए भी कभी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है। टेराफॉर्म का आपको सेशन अगर भी मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखे, मैंने जो पिछले क्या नाम है बैच के अंदर पढ़ाया था, मैं वहां पर यही बताता रहा हूँ कि टेराफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन इतनी अच्छी है कि आपको अभी भी अगर 1 सेकंड के अंदर भी ये सीखना है कि हम टेराफॉर्म के थ्रू EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हाउ वी क्रिएट EC2 इंस्टेंस यूजिंग टेराफॉर्म, आपको पूरा कोड यहाँ पर मिल जाएगा। इसकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी अच्छी है। ये मैंने गलत लिंक खोल दिया, नीचे वाला खोलना था। तो बात ये कि आपको सिर्फ यूज करना है। अब आपको HCL की कितनी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, ये देखें, ये HCL आपको नजर आएगी अभी। जी मैं आप बताता हूँ, ये देखें, ये कोड है इसका, ये इतना सा कोड है। ये कितना टाइम लगेगा आपको ये लर्न करने में? ये स्टैंडर्ड पूरे EC2 के अंदर यही रहेगा टेराफॉर्म का। आपको सीखना क्या है? आपको अगर टेराफॉर्म में डिपेंडेंसी मैंने कहा था AWS की है या किसी क्लाउड कंप्यूटिंग की है, लेकिन मेरा जब टेराफॉर्म पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको AWS की ये बता दूंगा कि सर्वर क्या होता है,
आपको ये बता दूंगा कि स्टोरेज क्या होती है, वहां पर मुझे बताना पड़ेगा, लेकिन इसीलिए मैंने इस कोर्स को सबसे लास्ट में रखा हुआ है, क्योंकि ये डिप्लॉयमेंट सारी क्लाउड के ऊपर होती है, वहां पर मैं AWS का कुछ नॉलेज जरूर दूंगा बेसिक लेवल का। लेकिन जिन्होंने AWS पढ़ा होगा उनके लिए ऑब्वियसली वो बेनिफिट ज्यादा हो जाएगा, अदरवाइज जब आप लोग AWS पढ़ लोगे तो फिर आपका बेनिफिट होगा इसका। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक EMI चेंज करनी है, यहाँ पर दूसरा साइज चेंज करना है, यहाँ पर की चेंज करनी है, यहाँ पर सिक्योरिटी की चेंज करना है, यहाँ सबनेट चेंज करना है, एंड देन यू कैन अप्लाई इट एंड इट विल क्रिएट योर EC2 टू इंस्टॉल। ये अभी भी आप ये कोड चला देना, यानी कि आपके पास जो सारा कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल है आपका, ये आपके अकाउंट में AWS के अंदर EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर, सर्वर क्रिएट कर, लिनक्स। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज ये याद करने की जरूरत क्या है किसको, जब आपके पास डॉक्यूमेंटेशन इतनी अच्छी है। आप मैंने तो कभी भी बैठ के ये मॉड्यूल पूरा नहीं लिखा। आप मैं विजुअल स्टूडियो यूज करता हूँ, विजुअल स्टूडियो में टेराफॉर्म की एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, वो सारा कुछ खुद ही लिखवा देती है, ठीक है। तो शायद मैं ज्यादा डेप्थ में चला गया, लेकिन ये चीजें सिर्फ असल में मोटिवेट करने के लिए, बहस इस चीज की मोटिवेट करना है मुझे। जी भाई साहब, जी तो सर मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग आउटलाइन। मेरे पास अभी जो आपने डेवऑप्स में जो टूल्स कवर करवाए हैं उसमें से अगर बात की जाए, मेरा इस वक्त एनसिबल के ऊपर ज़्यादा और टेराफॉर्म के ऊपर काम नहीं किया हुआ। अपार्ट ऑफ दैट टूल्स मैंने काफ़ी चीज़ें मतलब अपनी लर्निंग की हुई है। अब जिस तरह अगर फॉर सपोज मैं डेवऑप्स के लिए कहीं अप्लाई करती हूँ तो वहाँ पे हमेशा एक चीज़ होती है जो आपसे रिक्वायरमेंट में मांगी जाती है, 2 to 3 years एटलीस्ट आपका एक्सपीरियंस हो इन डेवऑप्स CID CD पाइपलाइंस के अंदर, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव ये था इस कोर्स को एडॉप्ट करने का या इनरोल करने का। क्या इस कोर्स को करने के बाद जो 2 to 3 years का आपका एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है, आप उस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे या जस्ट ये बिगनर और इंटरमीडिएट लेवल रहेगा? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो आपने कहा कि आपने मैक्सिमम टूल्स के ऊपर काम किया, दैट्स वेरी गुड। अब बात आती है कि आपका ये चीज किस तरह से कवर करेगी। असल चीज ये कि जो CI/CD पाइपलाइंस है जो कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे, वो हम लोग स्क्रैच से डिप्लॉय करेंगे। जब आप स्क्रैच से एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करेंगे और आप उनको डिप्लॉयमेंट करके आप अपनी CV में मेंशन कर सकते हैं, आप अपने यानी कि अपने चलो CV में नहीं भी मेंशन करती है, आप अपने नॉलेज में मेंशन करती हैं, और आप जब भी कभी किसी नेक्स्ट पोस्ट के लिए जगह पे अप्लाई करती हैं, आपको पता होता है कि वो फ्लो क्या था, वो चीज कैसे डिप्लॉय। मैंने अगर जावा की पूरी CI/CD पाइपलाइन बनाई है, जिसमें आप लोगों ने क्या नाम है बिल्ड स्टेज भी बनाई है, हमने टेस्ट स्टेज भी बनाई है, हमने डिप्लॉय स्टेज भी बनाई है, और हर स्टेज के अंदर मैंने क्या क्या कुछ किया था। अगर आपके कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर है, देन आप कह सकते हैं कि भाई मुझे ये चीज पता है। और आप जब से क्वेश्चन किया जाता है कि चले मुझे बताएं कि आपने टेस्ट स्टेज में क्या किया था, तो आप कहेंगे मैंने टेस्ट केसेस वहां पर लिखे थे, और वो टेस्ट केसेस मैंने नहीं लिखे थे, डेवलपर ने लिख के दी। तो मैं डेवऑप्स का काम ही नहीं टेस्ट केसेस लिखना, डेवलपर टेस्ट केसेस लिखता है। आपने टेस्ट केसेस लिखे, उसको टेस्ट स्टेज में इंक्लूड किया, उसकी जो डिपेंडेंसीज थी आपने बताया कि भाई मैंने ये इमेज यूज किया, इसके अंदर ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की, अगर उसने सेलेनियम यूज किया हुआ है या उसने कोई और चीज यूज की हुई है, साइप्रस यूज किया हुआ है टेस्ट के लिए, आप बताएंगे मैंने ये चीजें इंस्टॉल की थी और इस तरह से मैंने पाइपलाइन क्रिएट की थी। अब बात आ जाती है कि डिफरेंट और टूल्स की। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो रहे हैं, बिगिनर लेवल इस तरह से नहीं है, असल चीज है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, असल चीज है। क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली आपको तो 3-4 टूल्स का पता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो भी स्टार्ट करेंगे, जिन्हें लिनक्स के अलावा कुछ भी नहीं पता होगा, जिन्हें ना डॉकर का पता होगा। हमने स्टार्ट स्क्रैच से करना है, बट वी विल ग्रो टुगेदर, वी विल लर्न कि हम वहां से फ्रेश से यानी बेसिक से स्टार्ट करके मीडियम लेवल पे आएंगे और फिर एडवांस लेवल का टच देंगे। मैं बहुत एडवांस लेवल इसलिए नहीं इसको इसलिए कहता कि बहुत ज्यादा एडवांस लेवल अगर करने लगे तो ये 6 महीने का कोर्स बन जाए, क्योंकि टूल्स आर्ट है। मुझे लोग कहते हैं कि यार, मुझे तो कई लोगों से ऐसे होता है यानी कि मिला है कि हम टूल्स को सेपरेट कर दें, यानी कि हम सिर्फ एक डॉकर पढ़ाएं 1 महीने में या 15 दिन में अंदर या इस तरह से। मेरा 1 महीने या 1.25 महीने का तो सिर्फ डॉकर है, इसके अंदर डॉकर पे मैंने सबसे ज्यादा टाइम लगाया है। ठीक है। बेसिकली मेरा जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि लेट्स सपोज जैसे कोई डेवऑप्स इंजीनियर वो कहीं वर्किंग कर रहा है, 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस में उसे जो भी चीज़ एक्सपीरियंस की है, लाइक उसकी नॉलेज ज़्यादा है, उस चीज़ को ओवरकम किस तरह से किया जाएगा? मेरा मेन क्वेश्चन स्टिल वहीं पे है, ओवरकम हो जाएगा क्या ये? देखिए, ओवरकम किस तरह से होता है? ओवरकम इस तरह से होता है कि आप या तो खुद कर लें, काम आपने किया हो, कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिली हो, या आपको जो पढ़ा रहा है करा रहा है वो अपनी जो क्या नाम है एग्जांपल्स के साथ आपको वो चीज डिफरेंट बताए कि भाई मैंने ये काम इस तरह से किया। मैं अपने कई प्रोजेक्ट्स भी इसमें दिखा देता हूँ, कई प्रोजेक्ट्स इसमें दिखा देता हूँ कि भाई ये चीज मैंने इस तरह से की थी, या ये मेरी पाइपलाइन इस तरह से क्रिएट हुई थी, या ये मैंने ग्रूवी का कोड इस तरह से लिखा था और उससे मैंने ये अचीव किया था। तो वो चीज होती है कि या तो आप खुद से लर्न कर लेते हैं या एक्सपीरियंस कर लेते हैं, या आप किसी के एक्सपीरियंस से अपना नॉलेज गेन कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली
डेवलपमेंट यानी कि डिप्लॉयमेंट्स का, मेरा डेवलपमेंट का तो नहीं होगा, डिप्लॉयमेंट्स का होगा। मैं ये कहूंगा, यानी कि एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि भाई मैंने पाइथन की टीम्स के साथ भी काम किया हुआ है, मैं जिस क्लाइंट से कर रहा हूँ वो एक्सटेंसिवली पाइथन के ऊपर काम कर रहे हैं। अब मुझे पाइथन तो नहीं आती, मुझे स्क्रिप्टिंग आती है बहुत बेसिक लेवल की पाइथन की, लेकिन मैंने पाइथन की एप्लीकेशंस नहीं बनाई, लेकिन मैंने उनके साथ काम किया तो मेरा वो चीजें सीखी हैं, उन्होंने कैसे चीजें यानी कि डिप्लॉय करवाई हैं मुझसे, मुझे उन चीजों का पता है। जावा के साथ की नहीं तो जावा की मुझे चीजों का पता है, तो वो चीजें मैं ट्रांसफर करने की कोशिश करूंगा अपने इस कोर्स के अंदर, कंटेंट के अंदर, कि वो चीजें मैंने किस तरह सीखी। तो वो चीजें आपके लिए ऑब्वियसली मैंने आपको जिस तरह बताया है। अच्छा, यहाँ पर बहुत दफा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये रिकॉर्डेड कॉल है, मैं ज्यादा कोशिश ये करूंगा, पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि मैं इस कोर्स के एंड तक, मुझे बहुत स्टूडेंट्स हैं मेरे जो कि ये कहते हैं कि हमें एक इंटर्नशिप वाली चीज ऑफर की जाए या इंटर्नशिप वाला प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोग के कोर्स खत्म होने तक मैं एक इंटर्नशिप वाला पूरा एक फ्लो बना सकूं, कि अब कोई ऐसा एनवायरनमेंट बना सकूं कि जहां पर आपको 1 महीने की या 15-20 दिन की या 2 महीने की कोई इंटर्नशिप चीज मिले, जहां पर आप खुद अपने प्रैक्टिकली वो चीजें, मैं आपको प्रोजेक्ट दूं, आप वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करें, उस प्रोजेक्ट में मेरी टीम आपको हेल्प आउट करे, आपको असिस्ट करे उसी फ्लो में, जिस तरह टिकट्स साइन होती है, जीरा पे टिकट्स होती है, जिस तरह से आपको होता है, उसके क्लोज एनवायरनमेंट आपको बना के दे सकूं कि जो आप लोगों को किसी कंपनी में हेल्प आउट करे आपकी डिप्लॉयमेंट्स के लिए। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट, जो कि मुझे पता है कि बहुत सारी मुझे रिक्वायरमेंट्स आती रही हैं इस तरह की, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह का एनवायरनमेंट चाहते रहे हैं, तो जो कि आपको इजी करेगी, आप अपनी सीवीज में मेंशन कर सकते हैं अपना, और आई विल ट्राई कि मैं उसका कोई सर्टिफिकेट भी आपको इंटर्नशिप का दे सकूं। श्योर सर, थैंक यू। बाकी आप लोग मुझे पर्सनली भी मेरा जो क्या नाम है, इस पे व्हाट्सएप पे है, कम्युनिटी ग्रुप है, उस पर ज्वाइन करके भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। जितनी भी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की हुई आप लोग जरूर करें, हैप्पी टू असिस्ट यू। मेरी टीम है, उजैर इस टीम का मेंबर है, तैयब इस टीम में है, हम लोग सब माशाल्लाह ये सर्टिफाइड हैं, और इंशाल्लाह दे विल AWS प्रोफेशनल सर्टिफाइड एज वेल, जल्दी हो जाएंगे। तो क्योंकि अभी प्रोफेशनल नहीं की हुई, लेकिन दे आर एसोसिएटेड सर्टिफाइड। वन मोर थिंग, इस कोर्स को करने के बाद टेराफॉर्म और कुबरनेटिस क्या मैं पेपर अटेम्प्ट कर सकूंगी? एक चीज और थी मेरी, ये अच्छा मुझे ये क्वेश्चन 2 है। पेपर अटेम्प्ट करना था। हाँ, लेकिन एक बात जरूर मैं इसमें मेंशन करूंगा ऑनेस्टली, कि ये जो कोर्स कंटेंट है ये सर्टिफिकेशंस को देख के नहीं डिजाइन किया हुआ, ये मार्केट को देख के डिजाइन किया। जिस तरह आप मुझसे पूछे ना AWS का कोर्स जो मैं पढ़ाता हूँ, कि AWS के कोर्स के बाद आप AWS का एग्जाम दे सकती, तो मैं ऑनेस्टली कहूंगा हाँ दे सकती। ये जो कोर्स कंटेंट है ये मार्केट के अकॉर्डिंगली बनाया, क्योंकि देखिए जो सर्टिफिकेशन होती है ना, सर्टिफिकेशन में कोर्स कंटेंट डिफरेंट होता है, उस पर कई चीजें होंगी, थ्योरी में भी पढ़ो, डेफिनेशन भी पढ़ो कि भाई परसिस्टेंट वॉल्यूम्स क्या होते हैं, परसिस्टेंट वॉल्यूम्स की टाइप्स क्या हैं, उसके नाम के अचीव कैसे कर सकते हो, वो थ्योरेटिकल पार्ट भी उसमें कवर होता है। हालांकि कुबरनेटिस का जो एग्जाम है वो ज्यादातर प्रैक्टिकल बेस है, लेकिन उसमें इस तरह टेराफॉर्म का सारा थ्योरेटिकल बेस है। तो चीज ये कि ये कोर्स कंटेंट जॉब मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है, AWS का जो है वो जॉब और सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग बना हुआ है। ठीक है, एंड लेट्स सपोज अगर मैं इसकी प्रेप करती हूँ, तो आप लोगों के एंड से, कम्युनिटी के एंड से, अगर मुझे प्रेप करते हुए कोई हेल्प आउट की जरूरत हो, तो आप लोगों के एंड से ऐसा तो नहीं होगा कि ये हमारे कोर्स में नहीं था तो ये चीज़ हम कवर नहीं करवा सकते हैं देखिए इन मेरी फ्यूचर अगर मैं इसको करना चाहूँ? हाँ नहीं, देखिए अटेम्प्ट करने के लिए जितनी मेरे पास रिसोर्स है, मेरे कम्युनिटी के अंदर, यानी कि मेरे जो सर्कल है जिस मार्केट में काम करता हूँ, बहुत सारे ऐसे पर्सन जो सर्टिफाइड हैं, मैं उनके साथ आपको लिंक कर सकता हूँ या उनसे हेल्प आउट कर सकता हूँ कि मटेरियल कौन सा फॉलो करना चाहिए सर्टिफिकेशन के लिए। तो वो ऑब्वियसली दिस इज द पार्ट ऑफ माय जॉब, कि मैं अपनी पूरे 5 दिन की जो जॉब का जो स्ट्रेस होता है क्लाइंट का होता है, उसके बावजूद भी सैटरडे संडे को पढ़ा रहा होता हूँ, तो वो इसी वजह से करता हूँ कि यार आई एम हैप्पी टू असिस्ट, कि मैं अपनी कुछ सर्व कर सकूँ दूसरों को भी। तो दिस इज द मेन रीजन कि मैं अभी इस टाइम यहाँ पर हूँ, तो मैं चिल कर रहा होता। चलें, ठीक है, जज़ाकल्लाह सर। नो प्रॉब्लम, वेलकम। कि किसी का और क्वेश्चन तो प्लीज इस क्वेश्चन करें, फिर हम सेशन करते हैं, सेशन पे बहुत लंबा हो जाएगा, बट वी हैव 9 मिनट्स, क्योंकि 51 हो चुकी हैं, हम पूरे 6 बजे खत्म कर देते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? ये AWS पे आप